तो फीडबैक रिकॉर्ड होना चाहिए. हाँ जी. Now you can start again. Yes, I'm Dimple and I have done numerology with sir and numerology sir का करने के बाद जो मेरी readings में जो accuracy आई है, it has immense I think gratitude to sir only. इतना अच्छा results आया है. All my clients they are really happy क्योंकि I had Great. done numerology before but जो sir ने जो वैदिक का knowledge एक add करा के दिया है, that is giving superb results and I owe it always to you sir, and that is Thank you the so much. only reason that I am coming back and doing the astrology course also with you. Great. So astrology अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं. विश्वनाथ जी, why don't you start? Why don't you also tell something about yourself? आप क्यों कर रहे हैं कोर्स, कहाँ से आप? रुचिका, where are you from? I am from Noida. अच्छा, you are from Noida, so great. हाँ जी विश्वनाथ जी. हाँ जी, सुनने आ रहा है सर आपको? हाँ जी आ रहा है. मैं तेलंगाना से बिलोंग करता हूँ. अच्छा, तेलंगाना से. ओके. अच्छा. सो आप क्यों कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी? सीखना इंटरेस्टेड है बस. सीखना इंटरेस्टेड है बस, कि प्रोफेशनली परस्यू करना चाहते हैं इसको आगे कभी फ्यूचर में, कि आप सिर्फ हाँ करना, अगर अच्छा लगे तो करना चाहते हैं. जब प्रेडिक्शन सही हो गए तो उसके लिए तो पूरा सीखना पड़ेगा ना. बेसिक में प्रेडिक्शंस नहीं सीखेंगे हम लोग. हाँ वही. यस, वी विल प्रोबब्ली लर्न लॉट ऑफ द बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर हो जो अभी तक है, तो वो नॉलेज आपका क्लैरिटी मिलेगा आपको. सो वट एवर बेसिक, हाँ प्रेडिक्शन इज कवर्ड इन एडवांस कोर्स, एंड थोड़ा सा बेसिक समझने के बाद यस यू कैन गेट इनटू प्रेडिक्शंस, एंड यस प्रेडिक्शंस करने के बाद यू कैन परस्यू दिस प्रोफेशनली. और अगर एंड इफ एनीवन हु इज इनटू एनी काइंड ऑफ ऑकल्ट साइंस, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज एन एडेड एडवांटेज. तो ये चीज है. तो अच्छा, बाकी you guys can choose to switch on your cameras if possible and keep yourself on mute. तो मुझे पता लगता रहेगा कि I'm not talking to a blank screen, I'm talking to somebody who's studying. ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिखता रहे तो अच्छा लगता है कि हाँ कोई पढ़ रहा है. अदरवाइज वो ऐसा लगता है you're talking to a blank screen and then probably you're speaking and then if you're nobody, तो थोड़े से एक्सप्रेशन भी दिख जाते हैं कि समझ में आया कि नहीं आया. Sir, just excuse me for 15-20 minutes. I'm traveling and going home. So I not a will. problem. मतलब see, if it is not a problem, मतलब अगर आप switch on रखेंगे तो अच्छा रहेगा. बाकी फिर whenever you feel अगर कुछ problem है तो you can always switch it off. Not an issue. I will continue recording हो ही रहा. Sir, I will prefer to keep my camera off. I'll let you know later. Why? Okay, not a problem. So ठीक है, but be available on mic, whatever. If there is any. Should I keep myself unmuted? You can keep us. It should not disturb. The background noise should not disturb. No, not at all. No. That's it. So we'll start with basic astrology. अभी आप लोग का astrology के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? What is it that you know about astrology? क्या है astrology? बताएं विश्वनाथ जी, आप बताएं क्या जानते हैं, क्या what is astrology? Why do you, मतलब आप सीखना चाहते हैं, interested about astrology क्या है? 9 planets और 26 stars. 26 stars. राहु केतु दशा, समदशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा. बस चलिए ठीक है. अच्छा, इतना मतलब. बट एस्ट्रोलॉजी क्या है, मतलब व्हाट इज इट, व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? Astrology is a science which will, जिससे प्रेडिक्शन हो सकता है, जिससे आपके फ्यूचर के बारे में पता लग सकता है. सब मैं आपको हेल्प कर देता हूँ. चलो, ऐसा ही कुछ है. So can I speak? Yeah, please. So as per my knowledge, so I'm new completely to this field. My knowledge is we have planets and how these planets impact us, they are linked to the time from when we are born till each event which is happening in our life. Sure. So it's basically our life journey is impacted and our life events are impacted by the placement and the movement of these planets. That's my basic knowledge. That's
You can say that. You can say that. There's nothing. See, you can have as many definition as you wish for astrology. We'll work on the definition also. So Right. let's start this. So there are a couple of things. What is it that we'll learn during the entire course? So first, today we'll do a little bit of what is astrology, history of astrology, from where it started. So can I Then, interrupt one yeah, question? Will we get these slides and you'll get everything. Don't worry. we don't need to take any. But if you wish to take notes, it's always good for you to take notes. I will, but we don't need to write up all this. No? You will No, give you them. don't have to see. You have to pay attention and ask questions. That's it. So questions पूछना जरूरी है. Questions नहीं पूछेंगे तो I would understand. मतलब मुझे लगेगा आपको सब आ गया, and I will move on. If you have any question, you can always ask. Okay, thank you. Right. So, and history, we'll learn about what is history of astrology, and then we'll also know about astronomy behind astrology. We have been talking about stars. हम stars के बारे में बात कर रहे हैं. We have been talking about nakshatra, planets. ये सारी चीजें हम लोग, we all know, हमने सुना है कहीं, and we have been, and because two of you have already done numerology, which is also numbers are related to planets. तो planets के बारे में थोड़ा बहुत knowledge आप लोगों को है कि क्या planets होते हैं. So, and क्या है, what is it, तो वो हम will try and do that. फिर थोड़ा सा concept of time and space पे हम बात करेंगे. And then there is Indian calendar, जिसको हम बोलते हैं festivals and तिथिज, और ये सब क्या होते हैं, कैसे आते हैं. बहुत बार आपने अभी सुना होगा, अभी आने वाला नेक्स्ट ईयर मकर संक्रांति आएगा. तो व्हाट इज मकर संक्रांति, तो उसका एस्ट्रोलॉजिकल रेलेवेंस क्या है एंड उसका एस्ट्रोनॉमिकल रेलेवेंस क्या है, वो दोनों चीजें हम लोग करेंगे. देन आपने देखा होगा आपका सनसाइन बेस्ड होता है. This means, can I keep asking? हाँ, you can keep asking, not a problem. So this means जो भी Indian calendar है उसको देख के we'll be able to tell what are the auspicious dates, which are the inauspicious dates, do all those things also? हाँ, मतलब वो मिल जाता है आपको, इंडियन कैलेंडर देख के आपको पता लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा, there is nothing called auspicious days, there is nothing called inauspicious days. अच्छा, यहाँ तो बहुत मानते हैं. सब जगह ही मानते हैं. मैं वही बता रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर करूँ. एंड what I will tell you is something which might come as a shock to you, but yes, be prepared. तो वो वैसा सा नहीं है जितना वो हम मानते हैं. हाँ, ठीक है. In my in-laws family, so nothing is done without proper tithi and dates, and which is okay. There's nothing wrong in it. See, well, I'll tell you which are the dates which are considered as auspicious and inauspicious. तो आप वो पता कर सकते हैं. हाँ जी, विश्वनाथ जी, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर, ये एस्ट्रोलॉजी में वैदिक क्या होता है, केपी क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे. नाड़ी एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, एडवांस सब बताओ, सब कुछ, सारे क्वेश्चन. हाँ, बहुत बिल्कुल सारे. वैदिक क्या होता है, पराशरी क्या है, वैदिक कुछ नहीं होता. मैं भी अब करूंगा. आई विल सी एंड ऑफ द क्लास आपको कोई क्वेश्चन रह जाते हैं आपको जो अनआंसर्ड है, प्रॉब्ली वो बाकी आने वाली क्लासेस में कवर होंगे. एंड आई विल आपके दिमाग में एस्ट्रोलॉजी को लेके कोई भी मिसकंसेप्शन, मिथ, कोई भी ऐसी चीज है कहीं भी आपने सुना हो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ने आपको बोला कि आपकी कुंडली में ये दोष है, ये फला राजयोग है, कुछ भी है, योग दोष कुछ बोला हो, आप उसका जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. आप मेरे से वो पूछ लेना, वो पूरा डाउट 100% डाउट्स क्लियर होंगे. तो वो आप यू कैन आस्क एनी टाइम, नॉट अ प्रॉब्लम. तो दूसरा आपने देखा होगा सनसाइन हम लोग मानते हैं, जो न्यूज़पेपर पे निकलता है हॉरोस्कोप. मार्च 21 टू अप्रैल 21 इज एरीज, और इस तरीके से आप एरीज, टॉरस और ये सनसाइन हम लोग देखते हैं. तो ये जो चीज है, ये भी आपको समझना चाहिए. ये भी आप समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो उसमें और जो हमारे इंडियन मून राशि, जो हम लोग राशि बोलते हैं, उसमें क्या फर्क है. तो दो कॉन्सेप्ट है, सायन निरायन, वो भी हम समझेंगे, विच इज सन साइन एंड मून साइंस. फिर हॉरोस्कोप्स, कई तरीके के हॉरोस्कोप्स होते हैं. हॉरोस्कोप क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या चीज है, वो हॉरोस्कोप हम लोग करेंगे. असेंडेंट क्या होता है, लग्न क्या है. Practically also, sorry sir, will we do practically also कुछ horoscopes लेंगे sample studies में? हाँ, आप अपने ही हॉरोस्कोप आप ले लेना, सैंपल स्टडीज. सी अभी तो आपकी हॉरोस्कोप क्या है वो समझना है.
ठीक है, अच्छा, हॉरोस्कोप क्या है वो समझ मेरे में पास तो है ही नहीं हॉरोस्कोप। मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ओके, आपको फ्री अवेलेबल है, हाँ, एक ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन, लीजिएगा। हाँ, हाँ, ऑनलाइन आप अपना डिटेल डालिए, आपका हॉरोस्कोप आपके पास आ जाएगा। वो मैं राइट, जब हॉरोस्कोप की बात करूंगा मैं आपको बता दूंगा क्या क्या करना है, कैसे देखना है। पहले ओके, आप कॉन्सेप्ट तो समझो, ठीक है ठीक है, सर। डोंट रश इनटू थिंग्स, विल गो हाँ, स्लोली नो, आई एम एंड जस्ट ट्राइंग टू टेक हाँ एन हाँ अंडरस्टैंडिंग, वो भी हम ले समझेंगे हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल, अपना हॉरोस्कोप कम से कम अपना हॉरोस्कोप समझ में आएगा आपको, लेकिन वो पराशरी स्टाइल में आएगा, प्रिडिक्शंस नहीं होंगी उसमें। ओके, ठीक है, जैसे होता है ना कि एक आपने डेट ऑफ बर्थ बनाया और डेट ऑफ बर्थ का आपने जैसे लोशु ग्रिड आपने जब किया है, तो लोशु ग्रिड में आपने बनाने के बाद आपको ये समझ में आया कि आदमी का नेचर क्या है, क्यों है, कैसा है, क्या चीज है। राइट, वैसे ही सा एक आप समझ लीजिए एक हॉरोस्कोप बनेगा और ओके, उसमें, बट हाँ लोशु की लिमिटेशन है कि उसमें प्रेडिक्शंस नहीं है, तो इसमें भी प्रेडिक्शंस नहीं है। ठीक है, वैदिक में प्रेडिक्शंस है कि कौन से साल में क्या होगा, कब कहाँ पे क्या चीज होने वाली है, तो उसके हिसाब से हम प्रेडिक्शंस तो कर मैंने सकते वैसे हैं। वैदिक भी किया था, आई जस्ट रिमेम्बर बिकॉज आई डिड वास्तु न्यूमरोलॉजी। वास्तु न्यूमरोलॉजी, वेरी गुड। पता नहीं कितने वर्जन आ गए किस चीज के आ गए, हाँ, बट ठीक वास्तु न्यूमरोलॉजी है। हाँ, करा था, ज्वाइन वास्तु कोर्स, और उन्होंने वास्तु न्यूमरोलॉजी बताया, व्हिच वाज वेरी इंटरेस्टिंग नहीं होगा एंड आई इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। प्रैक्टिस्ड इट। हाँ, बहुत यू करेक्ट है। मतलब सी यू, एनीथिंग यू डू यू शुड गेट रिजल्ट, यू शुड गेट गुड रिजल्ट्स, हाँ, फोकस आई ऑन इट। प्रैक्टिस्ड इट, सो आई हैव हाँ, गॉट रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। वेरी हाँ, गुड, वेरी गुड। सो वो चीज है। देन यू हैव दिस, यू विल नो अबाउट व्हाट 12 हाउसेस आर। पहले तो हॉरोस्कोप समझेंगे, हॉरोस्कोप में कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स हैं हॉरोस्कोप के। एक होता है जैसे हाउसेस हैं, एक प्लैनेट्स हैं, ठीक है, और एक साइंस है। साइंस मतलब राशि, तो जोडियक साइंस जिनको हम बोलते हैं। तो ये तीनों लेयर्स हम समझेंगे, व्हाट डज एवरीथिंग मीन्स। फिर प्लैनेट का सिग्निफिकेंस समझेंगे, व्हाट डज वन पर्टिकुलर प्लैनेट इंडिकेट्स। देन नक्षत्र क्या है, कैसे हम नक्षत्र कैलकुलेट करते हैं, क्या चीज नक्षत्र है, वो सब करेंगे। फिर हम सब लॉट वाला एक कैलकुलेशन करेंगे कि सब लॉट का इंट्रोडक्शन एंड कैलकुलेशन रहेगा। एंड देन दशा सिस्टम, उसका कैलकुलेशन रहेगा कि दशा कैसे कैलकुलेट करी जाती है, दशा सिस्टम होता क्या है। फिर सिग्निफिकेटर्स ऑफ ईच प्लैनेट, कैसे एस्पेक्ट्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग, कैसे एस्पेक्ट्स देखते हैं प्लैनेट के, कंजंक्शंस का क्या मतलब है, प्लैनेट का रेट्रोग्रेशन का क्या मतलब है, प्लैनेट कंबशन का क्या मतलब है। तो ये मतलब समझेंगे हम लोग, उनका क्या क्या एग्जैक्ट मतलब है और कैसे ये इफेक्ट करता है। एंड फिर देन अगेन योर ट्रांजिट्स विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड इन ब्रीफ कि कैसे ट्रांजिट, व्हाट इज ट्रांजिट। एंड देन फिर इम्पोर्टेंट हाउस, योग। फिर आपको, आपने सुने होंगे ये 3-4 बड़े मांगलिक योग, कालसर्प, साढ़े सती, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे कि इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है और कैसे आप हॉरोस्कोप में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड हाउ, मतलब इसके बाकी और क्या है इसमें, कोई हम रेमेडीज की बात नहीं करने वाले, कोई किसी चीज की कोई रेमेडीज नहीं, बट हाँ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच हॉरोस्कोप वाला हम बात करेंगे कि बेसिक आप अपने हॉरोस्कोप की रीडिंग कर पाए। और कोई भी आपको कभी भी आने वाले टाइम में, इवन इफ यू चूज टू डू एडवांस एस्ट्रोलॉजी विच इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी विच इज वेरी गुड, अगर आप एडवांस सर, नहीं भी नाड़ी करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में बताएंगे क्या होता है? आई हैव हर्ड अ मैं लॉट अबाउट इट, बट आई टेल यू, आई टेल यू एवरीथिंग। हाँ, तो ओके, नाड़ी भी वो हम एज वी प्रोग्रेस आई टेल यू एवरीथिंग, बिकॉज अभी बताने से आपको समझ नहीं आएगा। श्योर सर, अभी नोटेड। अभी मैं आपको जो भी चीज बताऊंगा, सो इट विल, the course is designed in such a way that you learn every day, and whatever you learn there is an additional knowledge which is it will increase your knowledge on a daily basis। तो वो उस चीज से ही होगा, बट जब वो रेलेवेंट होगा समझाना, आप समझ पाएंगे उसका मतलब, मैं आपको सब चीजों का मतलब समझाऊंगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। सो दैट यू लर्न। और अगर इस कोर्स को करने के बाद आपको अगर कोई भी कहीं पर भी अपना हॉरोस्कोप दिखाएंगे और वो कोई भी दोष बोलता है या कुछ भी बोलता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सही है कि गलत है, और अपना हॉरोस्कोप आप पढ़ पाएंगे, किसी और का भी पढ़ पाएंगे हॉरोस्कोप। हाँ, प्रिडिक्शंस करना इसमें नहीं सीख सकते आप, बहुत कम टाइम है और बहुत छोटी चीज है। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वास्ट फील्ड। तो लेट्स बिगिन। उससे पहले थोड़ी सी रूल्स है, मतलब टाइम से आना। आई विल स्टार्ट शार्प एट 6 एंड आप माइक्रोफोन्स को म्यूट रखें, बहुत अच्छा। तो बाकी कुछ अनसेट रूल्स है मेरे, जो हर मैं आई जनरली यूज ड्यूरिंग ऑल माय क्लासेस, स्पेशली प्रेडिक्टिव साइंसेस में, कि कॉमन सेंस एंड लॉजिक आर नॉट वेरी कॉमन, सो हम लोग कॉमन सेंस नहीं यूज कर सकते। और लेवल ऑफ फियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन सेंस। सी आपके पास कोई भी आएगा तो वो फियर में ही आएगा, डरा हुआ ही आएगा।
किस चीज से डरा होगा, कोई भी सिचुएशन होगी, मतलब कोई देयर इज सम फियर, पैसा खोने का डर है, शादी ना होने का डर है, किसी चीज का भी डर है, तो कोई डर होगा, किसी एस्ट्रोलॉजर ने डरा रखा होगा कि आपकी कुंडली में ये दोष है, वो दोष है, इस तरीके के दोष है। तो जब वो आप उस प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं, जब वो व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट प्रॉब्लम, तब आपको कॉमन सेंस नहीं समझ में आता, देन योर कॉमन सेंस इज जीरो। तब आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बोलेगा आपको किसी गाय के पूंछ के ऊपर आपको कोई धागा भी बांधना है, तो आप जाके उसको धागा भी बांध कर आएंगे कि मेरा कोई प्लैनेट का रेमेडी है, उससे मेरा टाइम ठीक हो जाएगा। तो वो अब बिल्कुल मतलब उल्टी चीज है, विच इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, योर लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, ये हमने सबने सुना। इन एस्ट्रोलॉजी आई कॉल इट फेटल। अगर एस्ट्रोलॉजी की आपको आधी नॉलेज है, कम नॉलेज है, और उसके बेसिस पे आपको कुछ भी आप करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान कर सकती है। सो इट्स फेटल। तो लिटिल नॉलेज नहीं रखनी चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि एडवांस में आते हैं सीधा और बोलते हैं मुझे बेसिक मालूम है पूरा। और बेसिक जब आप वो बात करते हैं, वो यूट्यूब वीडियोस देख देख के उन्होंने बेसिक सीखा होता है, समझ में नहीं आया बेसिक, या कुछ भी, किसी के 2 वीडियोस देखे, किसी के 3 वीडियोस देखे, एंड दे थिंक आई नो एवरीथिंग नाउ। तो वो लिटिल नॉलेज है। एंड वो सबके सब जो यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, वो सारे के सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट में। सी एवरी एस्ट्रोलॉजर, एवरी टीचर हैज इट्स ओन वे ऑफ टीचिंग, एंड हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है। एक बुक है, उस बुक को पढ़ के अपना पर्सपेक्टिव बना के सब लोग सिखाते हैं। सो इट Sir, इज I मोर ऑफ agree अ with you पर्सपेक्टिव। 100%. That's the reson I joined your course. सो क्योंकि वो फाउंडेशन जरूरी है। अच्छा, बहुत जरूरी है, फाउंडेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। although I'm not claiming that I'll teach you everything, but I'll teach you everything which is relevant. राइट। Irrelevant आपको दुनिया में, मतलब इसका कोई एंड ही नहीं है। There is no end to knowledge on astrology. तो ये एक वो है। दूसरा एक, I will use lot of Bollywood examples also, ठीक है। एंड उसमें एक आपने एक मूवी आपने देखी होगी, ओ माय गॉड, उसके अंदर लास्ट में मिथुन चक्रवर्ती का एक डायलॉग था जो बोलता है कि वी आर गॉड फियरिंग पीपल एंड नॉट गॉड लविंग पीपल। तो आप कुछ भी करेंगे, तो ये गॉड फियरिंग पीपल जो है ना, गॉड फियर वाला जो कॉन्सेप्ट है, यही आपके मतलब ये दिस इज समथिंग विच इज यू नो द प्राइम इमोशन ऑफ पर्सन, और वो उसी चक्कर में आता है, आपके एस्ट्रोलॉजर के पास भागता है कि कुछ गड़बड़ हो गई। Agree, sir. और Because यही na, most people who will come to you for consulting or anything, less is curiosity, more is the fear. हाँ, इट इज ओनली फियर। क्यूरोसिटी तो चलो ठीक, क्यूरोसिटी सेक अगर आप फ्री में देख रहे हैं तो क्यूरोसिटी स्टेक आएगी। हाँ, अगर आप पैसा लेके देख रहे हैं तो जिसको जो सीरियस है वही आएगा। तो बड़ी Yes. सिंपल सी चीज है, इसमें कोई इसमें वो नहीं है। आप अगर फ्री पैसा लेंगे तो कोई क्यूरोसिटी पैसा देके कोई मिटाने आया है, अगेन वो बहुत बड़ा इज द प्रोस्पेक्टिव लर्न यू नो स्टूडेंट फॉर एस्ट्रोलॉजी दे, True, sir. ऐसा करेगा तो। Hmm. So and one more thing, astrology is pure science. It will work for all, irrespective of caste, color, creed, religion, sex, any discrimination. Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Jain, Buddha, any other category of people you might think of, सबके लिए astrology काम करेगी। Some whoever is born on a particular date, time and place, उस पर एस्ट्रोलॉजी 100% काम करेगी। सो एस्ट्रोलॉजी को हम लोगों को रिलीजन से नहीं जोड़ना चाहिए, बट Sir, since you अनफॉर्चुनेटली। mentioned this, can I ask a question? हाँ हाँ प्लीज। It's okay ना if I ask in between? I'm not हाँ हाँ interviewing. हाँ ठीक है, बट लेट मी कंप्लीट द सेंटेंस देन यू हाँ, आस्क। ठीक। हाँ, तो नाउ यू आस्क, यू हैव सिंस यू हैव ऑलरेडी Acha, okay. Sir, जैसे I just wanted to ask one thing. Like, let's say there is an example. There are twins who are born on the same date. Okay. And time differential भी मतलब 1 minute का भी नहीं है. Right? So, just my perception. So, if I try and do numerology for them, उनका तो सब कुछ ही same है. But otherwise, they are not actually like that. Because these are my cousins I'm talking about. You know? So, then I felt that what is it?
where you can identify their interests and different things, then that I feel is only can be done through astrology. No. हाँ, in a way yes. Or in a otherwise, way what yes. is the alternate? नहीं, in a way yes. वो एस्ट्रोलॉजी में वो भी अब आजकल हम कर सकते हैं, because there are very the calculations are very accurate nowadays, and even with a fraction of seconds, मतलब वो within a minute, few seconds में भी वो horoscope change हो जाता है. ठीक है, मे बी अ मिनट एंड हाफ, उसमें हॉरोस्कोप चेंज हो जाते हैं, लेस देन अ मिनट भी हॉरोस्कोप चेंज हो जाता है. तो ये आजकल पॉसिबल है, पहले ये भी नहीं था. सो उसमें अगर इफ इट मेक सेंस वो हो सकता है. बट आई विल टेल यू अनदर साइकोलॉजिकल रीजन, बिकॉज I practice psychological astrology. So psychologically I can explain you why is there a difference between twins. Astrologically थोड़ा सा सबसे one of the challenging topic है ये twins का. Numerologically it is not possible to give any numerologically it's not possible, sir. It is not Right. possible. So वो limitation है numerology में कि नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही डेट है, हम तो डेट पे खेलते हैं, एक इनपुट पे. बट एक इनपुट पे आप कितना कुछ बता सकते हैं. वैदिक, हाँ, और प्रिडिक्टिव भी सेम होगा, मतलब एवरीथिंग विल बी द सेम, हाँ, बिकॉज़ एवरीथिंग विल बी सेम, बट क्वांटम डिफरेंट होगा दोनों का. अगर दोनों का ये आया कि दोनों का टाइम अच्छा है, तो दोनों का टाइम अच्छा है, बट क्वांटम कितना अच्छा है ये थोड़ा जानना थोड़ा मुश्किल है. एंड वो कैसे उसको प्रेडिक्ट करना है, विल कवर दिस टॉपिक ट्विन बर्थ. वी I just thought it came to my mind, and so I yes thought we will try and cover that. तो देखते हैं हम कितना कवर कर पाएंगे उसको, because it is more of a psychological understanding rather than astrological understanding. Okay. So ये चीज है. Then there is so it will work for everyone. तो अगर हम लोग बोलते हैं जैसे आपने कोई मंत्र दिया, कोई पूजा दी किसी को एज अ रेमेडी, आप जाएंगे तो पंडित जी आपको मंत्र पूजा या कोई दान कुछ इस तरीके की कोई ना कोई एक्टिविटी आपको बताएंगे करने के लिए एज अ रेमेडी या उपाय, एंड यू विल डू इट. बट अगर वही सेम पूजा आप किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन को बताएंगे तो वो तो नहीं करेगा. सो क्या उसकी लाइफ में वो प्लैनेट वैसे ही रहेगा? उसकी लाइफ में कोई उसका देयर इज नो ट्रीटमेंट फॉर दैट. सो उनकी भी रिलेटिंग, इनके रिलीजन रिलेटेड भी कुछ आप रेमेडी बता सकते हैं? नहीं हम नहीं, क्योंकि मेरे को तो पता ही नहीं है, मुझे तो उनका रिलीजन भी नहीं मालूम, तो मेरे को रेमेडी कहाँ से पता है? मुझे भी हेजिटेशन थी कि मैं अगर किसी को कर रही हूँ who's of a different religion, then how do I do? So because the reason वही मैं बता रहा हूँ, तो ये यही गलत है, क्योंकि we mix religion with astrology. Because we have seen, so as because all remedies are are Hindu remedies. The all remedies are this. रेमेडी का कोई थोड़ी धर्म होता है, रेमेडी का धर्म नहीं होता. बट क्या था कि गाय को चारा खिलाएं. हाँ, गाय को चारा, गाय तो यूनिवर्सल है, कोई भी खिला सकता है. ठीक है, तो उसको तो गाय को चारा खिलाना तो इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट हाँ, ये कोई रेमेडी नहीं है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज. क्या है ये रेमेडीज? हम जब एडवांस एस्ट्रोलॉजी पे कवर करते हैं उसमें बहुत डिटेल में इन सारी रेमेडीज को कवर करते हैं. एंड क्या होता क्या है कि आप जब किसी भी, क्योंकि आप प्रॉब्लम में है ना, आप जाएंगे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, वो सोल्यूशन बताएगा आपको. आप प्रॉब्लम समझने तो गए नहीं है किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, आप उसका सोल्यूशन लेने गए. डॉक्टर के पास आप जाते हैं दवाई लेने, तो दवाई लेने गए आप किसी भी प्रॉब्लम की, तो वो दवाई आपको चाहिए, उसने कुछ भी दवाई दी, आप उसको आंख बंद करके मान लेंगे, बिकॉज यू हैव फेथ इन दैट कि ये एस्ट्रोलॉजर ठीक बताएगा, मेरा टाइम ठीक हो जाएगा. बट वो कैसे ठीक होता है, क्या ठीक होता है, विल डिस्कस इन बिटवीन. बट वो चीज नहीं है. एंड देयरफॉर रिलीजन एग्नोस्टिक है ये हमारी एस्ट्रोलॉजी. रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है इसका. ये आप किसी भी रिलीजन पे, किसी भी उस पे इंसान पे आप अगर आप देखेंगे, एंड एस्ट्रोलॉजी आप किस तरीके से आप डील एस्ट्रोलॉजी को लेके चल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने आज तक हमेशा पिक्चरों में भी यही दिखाया गया, हर जगह यही दिखाया, कोई ऐसे ऑरेंज क्लोथ पहन के कोई आदमी पंडित जी हैं जो पूजा भी करा रहे हैं और पत्री भी देख रहे हैं और वही बता रहे हैं सारी चीजें उनकी लाइफ में क्या होने वाला है. तो ये हमारे मन में, हमारे एक सबकॉन्शियस में देयर इज अ परसेप्शन ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर कि एस्ट्रोलॉजर होगा तो वो इस तरीके की बातें करेगा. बट वो पूजा कराने वाला इंसान अलग है. एस्ट्रोलॉजर इज अ डिफरेंट कैटेगरी. एस्ट्रोलॉजर इज नॉट समवन हु विल परफॉर्म एनी पूजा. एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक स्क्रिप्ट है जो आप देख के पढ़ना सीखा आपने, और उसको पढ़ के आप उसके बेसिस पे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं. So that is what astrology is, which is again nothing related to any religion. And astrology is not just predictions करना या उपाय देना. Astrology is about your it's like a GPS.
आप ये समझे कॉन्सेप्ट जो है वो जीपीएस वाला कॉन्सेप्ट है। आपको कहीं जाना है, नोएडा से गुड़गांव जाना है और आपको जीपीएस आपने लगाया, उसमें बताया कि 2 घंटे का टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि जैम है। अब वो जैम में 2 घंटे का टाइम लगा, आपने कहा नहीं मुझे तो अभी जाना है, तो आप चले गए तो जैम में फंस गए। अब उसने आप 1 घंटे 2 घंटे बाद आपने देखा, अगर नहीं गए आप, मान लीजिए आप नहीं गए, 2 घंटे बाद देखा उसने बोला 1 ही घंटा लगेगा, तब आप निकले, तो आप पहुंचेंगे भले एक ही टाइम पे, बट उसने कुछ बताया कि ये टाइम प्रॉब्लम वाला है, इस टाइम पे मत जाओ, लेकिन आपने फिर भी किया वही काम, तो आप फंसोगे। नहीं किया काम तो आप बच सकते हो, अपना टाइम बचा सकते हो, कुछ और जगह यूटिलाइज कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो। तो इट इज बेसिकली साइंस विच विल गिव यू डायरेक्शंस, विच विल शो यू लाइट। दूसरी चीज क्यूरोसिटी, मतलब साइंस एंड बिलीफ सिस्टम कंप्लीट, मतलब दिस इज लाइक आई सेड बिलीफ सिस्टम। रिलीजन जो है वो आपका बिलीफ सिस्टम है कि भगवान है, और हर एक का अपना अपना बिलीफ है। कोई क्रिश्चियन होगा तो उसको बोलेगा वो जीसस है, मुस्लिम बोलेंगे कि इस्लाम में वो अल्लाह है, सब बोलेंगे अपने अपने बोलेंगे, हर एक के अपने अपने भगवान है, कि भगवान है, देयर इज सम सुप्रीम पावर एंड एवरीथिंग इज देयर। तो ये चीज वो फेथ है। Religion is based on faith. Astrology is not based on faith. It is based on pure facts. It is based on pure calculations. It is based on millions, billions of records which people have seen and developed so far. जितनी पॉपुलेशन है समझिए, जितनी आज तक आई गई, सबके मतलब सबकी हॉरोस्कोप स्टडी कर करके आगे डेवलप होते 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 आज की डेट में वो सॉफ्टवेयर लेवल पे आ गया है कि वेयर यू जस्ट पुट इन योर डेट्स डिटेल्स और आपका हॉरोस्कोप आता है, तो उसकी रीडिंग आप कर सकते हैं। और उसको पढ़ने के भी बहुत नए नए तरीके हैं। जैसे आपने पूछा कि पराशरी है, जैमिनी है, केपी है, नाड़ी है, और भी आगे है 2-3 है, बस सारी चीजें आपको बताऊंगा क्यों बेस्ड है, किस चीज पे बेस्ड है, क्या क्या है। सो ये डेवलपमेंट होती जा रही है, एज एन मोर वी आर प्रोग्रेसिंग, डेवलपमेंट होती जा रही है। तो ये डेवलपमेंट आगे भी चलती रहेगी और एक्यूरेट होती रहेगी। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड ये अकेली ऐसी साइंस है जिसको आप जितना मर्जी पढ़ लें। इनफैक्ट आई जनरली से दिस फॉर ऑल ऑक्कल्ट साइंसेस, आप जितना पढ़ेंगे ये कभी ऑब्सोलीट नहीं होगी। मतलब ये वाली साइंस जो है ये कभी ऑब्सोलीट नहीं होती, ये आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहेगी। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको अगर एक कोई पर्टिकुलर चीज आती है वो 2 साल में बेकार हो जाएगी। आप कोई फोन खरीदते हैं वो भी 2 साल बाद उसके 2 नए वर्जन आ जाते हैं, तो वो भी ऑब्सोलीट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एवर इवॉल्विंग है, लेकिन वो पिछला जो है उसके ऊपर और इवॉल्व होता है, नया आपको लेना पड़ता है, नया सीखना पड़ता है। इसके अंदर आप उसी चीज को भी अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे, और खुद ही अपने आप ही इवॉल्व होते जाएंगे, क्योंकि इतने केसेस आप देखेंगे। सो दैट इज अगेन वेरी गुड। दूसरी चीज अभी आप देखेंगे बेसिक तो sorry, हाँ सब बोलिए। बेसिक तो सेम रहेंगे, इट्स हाँ जस्ट दैट बेसिक तो सेम रहेगा। as we keep doing study हमें बहुत additional discoveries होंगी, बिल्कुल right? बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस जो है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, Yeah, वो वो that is like एक्सपीरियंस every उसका कोई किताब उसको पूरा नहीं कर सकती। true. कोई मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें इससे देख के ऐसा आप प्रेडिक्ट करेंगे, बट वो एक मैं अपनी नॉलेज का बताऊंगा, फिर जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो वो उसके ऊपर आप जो नॉलेज बिल्डअप करेंगे वो बहुत ही वो अलग होगी, बिल्कुल ही अलग होगी। एंड दैट इज एवरी एस्ट्रोलॉजर वुड डू दैट। हर एक का अपना एक स्टाइल बन जाता है। सेट रूल्स तो है ही है, बट रूल्स के देखिए, अब ये जो साइंस बनी थी ये बनी थी 5000 साल पहले। अब उस टाइम पे जो बने जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन आज नहीं एग्जिस्ट करती। right. टाइम प्लेस कंडीशन आज की डेट में कंप्लीटली बदल गया था। उस साइंस को आज के पर्सपेक्टिव में पढ़ना आना चाहिए। मतलब Right. अगर जैसे मान लीजिए किसी के हॉरोस्कोप में लिखा है कि डिवोर्स होने के चांसेस हैं, ये डिवोर्स होगा, तो आप ये आज से 20 साल पहले अगर आप देखेंगे तो वो डिवोर्स जो है वो बहुत ही इजी हो, मतलब डिवोर्स हो गया, आपने कहा ये डिवोर्स, मतलब बहुत मुश्किल था पीछे 20 साल पहले कहना कि डिवोर्स होगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं थी कि डिवोर्स होने का। पर्सन वुड Imaginable नहीं था सर, मतलब इमेजिनेबल it नहीं was था। not हाँ, acceptable, but now it could. Sir, could it also mean that it was a live-in relationship and they separated? नहीं वो लिव इन का अलग है, वो सब वो सबसे सारी कैसे हमने पढ़ना है लिव इन क्या होता है वो हम उसमें पढ़ेंगे। बट हाँ, लिव इन आज की डेट से 10 साल पहले तक नहीं एग्जिस्ट करता था, Right. आज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेक्शन 3 कौन सा वाला सेक्शन है वो ये
होमोज का और उसका गे मैरिज लेस्बियंस एंड गेज वाला हाँ जो राइट सर, मैंने रिसेंटली हाँ, रेड अबाउट इट। वो चीज है, अगर वो भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, इट इज लीगल नाउ। सो मेरे पास आया था करीब 1-1.5 साल पहले जब वो लीगल हुआ था, हॉरोस्कोप, 2 लड़कों का हॉरोस्कोप आया था कि दे वांट टू गेट मैरिज, उनका हॉरोस्कोप मैच करना था, 2 लड़के। And I do a lot of other corporate events and stuff. So a lot of people keep coming and they will tell you, yeah, I am a lesbian now. Tell me. So we are in a same-sex relationship. Now you tell me what. So they will tell their orientation openly, and they are very proud of it. So which is I'm not commenting, but this Yeah, was someone approached me also for that, you know, So but mine was numerology, so I don't know. न्यूमरोलॉजी में ये सब नहीं पता लगेगा। एस्ट्रोलॉजी में भी अभी तक ये केसेस ही नहीं आए तो इनको हम एक्सपीरियंस कर पाए। Okay. आप समझो, इनका बेस ही नहीं है हमारे पास इसका। People are not coming forward. सेक्सुअल परवर्जन का बेस है, वो पता लग जाएगा आपको कि कैसा होगा, क्या होगा, बट पर्टिकुलर ओरिएंटेशन क्या होगा, इसके बारे में हम वी डोंट हैव इनफ केस स्टडीज। Okay. कैन स्पेकुलेट ओनली। It's fairly a new subject because it's been So that's what I'm saying. accepted. It is your time, place, condition, your situation around you is changing every day. True. 10 साल पहले जो था वो आज नहीं है, ठीक है, मतलब आज बिल्कुल चेंज हो गया। व्हाट वी हैव चेंज इन लास्ट 10 years इज अनइमेजिनेबल। True. जो फोन आपके हाथ में आ गया है, फोन एवरीथिंग। ओटीटी किसी ने सोचा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा, उसमें आप देखेंगे सब अलग अलग, सिनेमा खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। Imagine sir, if we didn't have Zoom, हम कैसे exist करते ये कैसे साल? हमें ये ऐसी क्लासेस होने लगेंगी। पहले तो बड़े लोगों को वो विश्वास नहीं होता, मुझे खुद नहीं, एज अ टीचर मुझे नहीं होता था विश्वास कि मैं ऑनलाइन, मुझे ज्यादा, मेरे को खुद कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि जब तक सामने बैठ के बच्चे ना पढ़ रहे हो ट्रेडिशनल वाले, और सामने बैठ के, क्योंकि देन इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शन ऑल टुगेदर। And courses were also, full day course, 3-day course, 3-day Yes. training. You are a trainer. That's the reason, sir, I couldn't join anywhere. And when I also do training, Online I training have है। done extensive trainings. Why? Because Zoom is there. Zoom is there. So, man, that's what I'm saying. It has changed. Things have changed. Now you have to see horoscopes in the change environment perspective. पुरानी वाली चीज, पुराने रूल्स नहीं चलेंगे। So वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स अभी भी पुराने उसमें अटके हुए हैं, and therefore they are not able to progress. ये बहुत जरूरी है इसमें आता है। एंड साइन अभी आ जाएगा, अभी आपको न्यूज़पेपर में सुनने को मिलेगा, बहुत सारे लोग किताबें भी खरीदेंगे कि साइन बेस पर एरीज का अगला साल कैसा जाएगा, टॉरस वालों का कैसा जाएगा, जेमिनी कैसा जाएगा। सो आई कैन ओनली टेल यू दिस कि दिस इज पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट न्यूज। उसमें डिस्क्लेमर एक लिखा होना चाहिए कि ऑल एनी, जो पिक्चर से पहले आता है ना, सेंसरशिप का एक आता है ना, एक डिस्क्लेमर आता है, एनी इवेंट व्हिच इज is purely coincidental. Coincident. It's Yeah, purely because coincidental. sir, it is not possible. It is work of fiction. It is really, work of fiction. I've never seen it. I used to read at some time. I also, I was a big buff of anything which was, and imagine there are 130 crore people, 120 crore ले लेते हैं हम लोग for calculation sake। 120 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 12 सन साइंस है, तो 10 करोड़ लोगों का साल एक जैसा थोड़ी जा सकता है। True. And we are talking about astrology. Astrology is as personal, as specific as your thumbprint. Yes. It is not you cannot generalize astrology. Astrology cannot be generalized. ये सबसे बड़ा पाप करते हैं लोग, जो ये करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को जनरलाइज करते हैं, लोग पागलों की तरफ पीछे भागते हैं। सो ये सब, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो आई एम टेलिंग यू, क्योंकि मैं पूरे टाइम पे इन्हीं चीजों पे बात करूंगा, और यही ये सारी बातें होती रहेंगी, बार बार रिपीट होती रहेंगी। सो आई एम सेइंग दीज आर अनसेड रूल्स। सो नाउ But sir, जो generic होता है sun signs का, जैसे Linda Goodman and others, कि generic, they say Sagittarius are like this and Capricorns are like this. That is correct, right? See, if you read all 12 signs, have you read all 12 sun signs? Sir, एक टाइम था तो यही फॉलो करते थे। करते थे, सारे 12 के 12 पढ़े आपने? मैंने काफी, because I have observed people based on their sun sign। न्यूमरोलॉजी में 9 नंबर है, हम 9 नंबर की डेस्टिनी नंबर, वैदिक में जो हम बात करते हैं डेस्टिनी नंबर से हम बात करते हैं, आप मिला लो, उसी का नेचर मिला लेना आप, मतलब 100% एक्यूरेट जाएगा, 100% एक्यूरेट। राइट। तो एक भी मिसिंग नहीं होगा। बाकी पाइथागोरस, लोशू का मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि उनका उतना करेक्ट नहीं है। सर न्यूमरोलॉजी का काफी सिमिलैरिटी है, यू आर राइट। बट वो है, बट दैट इज अगेन, दैट इज जेनरिक।
वो हाँ, जो आप हॉरोस्कोप, general. आप ये नहीं कह सकते ना उसका कि ये वाला साल ऑल पाइसेस जैसे, और ये स्पेशली जब ट्रांजिट्स हम लोग देखते हैं कि यार सूर्य ग्रहण कौन सी राशि पे हो रहा है, टीवी पे आ जाएंगे लोग कि उन राशि वालों को क्या करना चाहिए, वो सब लोग वही उपाय Astrology फॉलो is करने लगेंगे। more about knowing better about yourself, more about yourself, your skill, है ना? That is the limitation of Loshu and Pythagorean. Vedic में it is about predictions. नहीं, It is about prediction. it is about predicting कि आपका अगले साल प्रमोशन होगा कि हाँ नहीं। सर, वो तो करा है, वो तो करते ठीक है, हैं। हाँ, तो वो उसमें वैदिक में तो वो चीज है, लोशु में नहीं है, उतना एक्यूरेसी नहीं है लोशु के अंदर। सो बट ठीक है, लेट्स नॉट वी आर नॉट डिस्कसिंग न्यूमरोलॉजी है, लेट्स गेट बैक टू हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब मैं बहुत ब्रीफ में आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ा सा आपको हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट इंटरेस्टिंग चीज है, समझना चाहिए हम लोगों को। एंड यहाँ पे आई विल ऑलवेज से दिस कि वी हैव बीन चीटेड बाय द यू नो the when we are born कि we have not been given the correct knowledge, हम लोग को नॉलेज नहीं दी गई सही। हमारे वैदिक मतलब जो अगर सही ढंग से पढ़ाया जाता हमारे को, तो यू वुड हैव नोन, एंड अगर आप पढ़ेंगे खुद भी आज की डेट में तो आपको पता लगेगा कि कितना कि किस लेवल का नॉलेज था हमारे एंसेस्ट्रल उसमें, और जो आप हम जो आज की डेट में पढ़ रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट लाइक इट वाज ऑल मतलब बीन देयर डन दैट टाइप उन लोगों के लिए। सारे जब 5000 साल पहले सब कुछ डिस्कवर्ड था, एवरीथिंग वाज डिस्कवर्ड। सो वैदिक पीरियड अगर हम बात करते हैं तो 1500 बीसी, 1500 साल बिफोर क्राइस्ट है, वो 1500 है कि 15000 है, इसके बारे में भी कोई पता नहीं। ऋग्वेद इज ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड एज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग बुक। तो ऋग्वेद को सबसे पुरानी बुक मानते हैं वर्ल्ड वाइड, कोई इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। और वो जो स्क्रिप्ट जो भी उसमें लिखा हुआ है, जो भी नॉलेज है उसकी, वो इट्स एन इमेंस नॉलेज, बहुत बहुत ज्यादा वो है। एंड वेद ही सबसे प्राइम नॉलेज है। तो एक वैदिक पीरियड आप समझ सकते हैं 600 बीसी तक रहा, और ये नॉलेज उतनी पुरानी है, 15000 साल पुरानी है, 20000 साल पुरानी है, कुछ आइडिया नहीं है। लोग 6000 7000 साल बोलते हैं, उतना हम मानते हैं, चलो हम उतना ही मान लेते हैं। देयर इज कोई उसका डेटिंग पे हमें वी डोंट नीड एनीथिंग, तो वो चीज है। अब उसके अंदर 4 वेद है, हम सभी को मालूम है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। अब वेदों को 4 हिस्सों में बांटा गया था, मंत्र और संहिता। भाई इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ब्रीफ में बोलूंगा कि ये नॉलेज है, इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए आपको कि क्या थे। तो मंत्र और संहिता जिसको हम बोलते हैं वेदों का, वो ओरिजिनल इनिशियल पार्ट था, जिसमें कि वर्सेस में पोइट्री में कोई चीज लिखी हुई है तो उसको मंत्र बोला जाता है। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण मतलब इट्स नॉट अ कास्ट और नथिंग, बट ब्राह्मण इज ब्रह्म का वो एंड, मतलब उसको ब्राह्मण हम बोलते थे एक प्रोज को, पैराग्राफ को। तो वो बीच वाला पार्ट जो है वो पैराग्राफ में है। थर्ड पार्ट उसका अरण्यक है, विच इज अ फॉरेस्ट। मतलब 4 आश्रम होते थे लोगों के, जो जब वो वन में जाते थे गृहस्थ पूरा करके, बाल्यावस्था, युवावस्था और वानप्रस्थ, और फिर उसका जब देखा अपने राजाओं को वन में जाते हुए, तो वो अरण्यक फॉरेस्ट बुक्स पढ़ते थे। और फिर बाद में वो उपनिषद, लास्ट पार्ट जो है वो उपनिषद है। जो उपनिषद इज बेसिकली नॉलेज, मतलब जो नॉलेज लेते हैं लोग नीचे बैठ के गुरु से नॉलेज लेते हैं, तो ये नॉलेज हो गई, वो उपनिषद हो गए। तो ये वेद हो गए, ये बहुत इट्स नॉट, में वेद कुछ कवर नहीं है, बट हाँ ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है। और दूसरी चीज इसमें उस टाइम पर जब ये साइंस हमारी डिस्कवर हुई, एक ही ऑब्जेक्टिव था लोगों का, एंड वन विच वाज डिस्कवर्ड which used to be discussed every time। मतलब एक था कि आदमी पैदा होता है ह्यूमन, एज अ ह्यूमन बीइंग, जब अगर हुआ है किसी और, मतलब कोई जीव जंतु कुछ और नहीं पैदा हुआ, ह्यूमन बीइंग पैदा हुआ, तो उसका एक प्राइमरी एक ही फोकस था, वो था लिबरेशन, विच इज मोक्ष। कैसे मिलेगा उसका, कैसे उस चीज को वो इस साइकिल से बाहर निकलेगा। सो दैट वाज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द, उसी पे सारा कुछ बेस्ड था, सारी नॉलेज हो। अब नॉलेज दो तरीके से आगे बढ़ी उस टाइम से, वैदिक पीरियड के बाद से, कि एक थी स्मृति, एक थी श्रुति। श्रुति इज व्हाट यू हियर। तो जो गुरु शिष्य परंपरा जो थी उस टाइम पर, जो एक ऋषि, प्रॉपर ऋषि थे, वो अपने शिष्यों को एक नॉलेज देते थे। वो जब गुरु बनते थे फिर वो अपने शिष्यों को नॉलेज देते थे। तो वो नॉलेज कभी डॉक्यूमेंट करी नहीं हुई, बहुत बाद में डॉक्यूमेंट हुई। ये चली तो कब से आ रही है, और उसी तरीके से आगे चलती गई चलती गई चलती गई। और फिर एक था स्मृति, जो याद करके आपने लिखा। तो अगर आप कभी इधर गए हैं, बद्रीनाथ साइड गए हैं, तो बद्रीनाथ आप गए तो वहां पे आपको वेद व्यास की एक वो मिलेगी, गुफा।
कि यहाँ पे वेद व्यास ने बैठ के महाभारत लिखी थी, 5000 साल पुरानी है, 5000 कुछ साल पुरानी है, उस पर लिखा भी हुआ है इट इज सो ओल्ड, और ऐसा लगता भी है कि हाँ शायद इतनी पुरानी होगी। और वहां पर जो लिखी गई थी उन्होंने जो, तो वो याद करके लिखी थी। गणेश जी का भी मंदिर है, गणेश जी ने लिखा था, एंड वो वहां पर वेद व्यास ने उनको सुनाई थी स्टोरी। तो वो स्टोरी जो थी दैट वाज स्मृति, याद करके लिखना। तो स्मृति एंड श्रुति ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, और इन्हीं के बेसिस पे आगे और जो क्लासिफिकेशन हुआ वो उसी बेसिस पे हुआ कि कौन श्रुति को ज्यादा रिलेवेंस मिला, स्मृति को थोड़ा कम रेलेवेंस मिला। कभी भी डिबेट होता था इनमें आपस में। तो फिर आए सूत्र, इतनी नॉलेज से उनको छोटा करके सूत्र में रखा गया। अब आप कभी भी मूड करें आप किसी का भी पढ़ने का तो जरूर पढ़े, हिंदू दर्शन करके आप कुछ भी टाइप करेंगे गूगल पे आपको मिलेगा। 6 दर्शन थे जो मेन थे, जो जिनके बेसिस पे सारी नॉलेज है। एक वैशेषिक दर्शन था विच इज बेस्ड ऑन रियलिस्टिक प्लूरलिज्म, विच सेज दैट जो एटॉमिक हमारा जो है ना, एटम डिस्कवर हुआ, हमने बोला एटम है सबसे छोटा पार्टिकल है, ये वैशेषिक दर्शन में 5000 साल पहले ऑलरेडी डिस्कवर्ड था, बता चुके थे कि हाँ ये एटम इज द, और एटम की मूवमेंट कैसे होती है वो भी अलग चीज थी, तो वो बताया गया। फिर न्याय, जो भी आपका सिस्टम है ऑफ आपका लीगल सिस्टम है, दैट वाज बेस्ड ऑन न्याय दर्शन। सांख्य दर्शन, ये अगर आपने कभी सुना हो, पुरुष प्राकृति का नाम सुना हो, तो ये पुरुष प्राकृति वाला सांख्य दर्शन है। तो ये भी हमारी एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद, ज्योतिष, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सांख्य दर्शन। पुरुष प्राकृति के उस पे ही बेस्ड है, वही 3 गुण आपको जो इसमें रजस, तमस और सत्व गुण, ये तीनों गुणों के बेसिस पे ही ये सांख्य दर्शन के, और बाकी और भी एलिमेंट्स है, पंच महाभूत जो हम बोलते हैं वो सारे एलिमेंट्स हैं, तो वो भी चीजें, सारी राशियां, सारे प्लैनेट सब इसी से रिलेटेड है। तो ये हम लोग एडवांस में एक पूरा ही टॉपिक है मोक्ष वाला, तो उस पर हम लोग बात करते हैं, बट इधर इतना ही काफी है। फिर देन सांख्य वाज अ थ्योरी, योग वाज प्रैक्टिकल। पतंजलि का योग दर्शन है जो कैसे उसको करना है, हाउ डू यू नो डू दिस, सांख्य दर्शन का प्रैक्टिकल वर्जन है। फिर देन पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इनको बोलते हैं वेदांत फिलोसफी, आपने सुना होगा अहम ब्रह्मास्मि, तो वो वेदांत का एक वर्जन है। तो ये सारे बहुत ही मतलब छोटे में भी नहीं, मैं कहूँगा बहुत इनजस्टिस है मेरी तरफ से भी इतना कम में बताना, बट हाँ ये दर्शन है, पढ़ना चाहिए हम लोग को। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि हमारे साथ कितना गलत हुआ, हमें नॉलेज दी ही नहीं गई, वी आर यू नो डिनाइड ऑफ रियल नॉलेज। अगर ये आप पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल, और हमें इतना ही बताया गया कि देयर आर हेटेरोडॉक्स रिलीजन एंड देयर इज कौन सा दूसरा हेटेरोडॉक्स और दूसरा ऑर्थोडॉक्स रिलीजन जो बोलते थे, मतलब वन विच जो वेद को अथॉरिटी मानते हैं, एक जो वेद को अथॉरिटी नहीं मानते हैं। तो जो वेद को अथॉरिटी नहीं मानते वो जैन और बुद्धिज्म है, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, एंड जो वेद को अथॉरिटी मानते हैं वो बाकी रिलीजन है। जो रिलीजन तो उसमें भी नहीं है। और आपको यह जान के हैरानी होगी, सांख्य दर्शन सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन है, इस दर्शन तक भगवान का कोई जिक्र नहीं था, वेदों में किसी भी भगवान का कोई जिक्र नहीं। जो भगवान का जिक्र है वहां पे दे आर ऑल नेचुरल गॉड्स। मतलब इंद्र भगवान है तो इंद्र भगवान इंद्र नहीं है जो हमें पिक्चरों में दिखते स्वर्ग लोक में बैठे हुए अप्सराएं आएंगी, वो वाले इंद्र भगवान नहीं, वो मतलब जो मेनका और ऋषि वाले इंद्र भगवान नहीं, वो इंद्र भगवान जो है वो है गॉड ऑफ रेन। तो जब भी अगर बारिश नहीं हुई या बारिश ज्यादा होगी, फ्लड्स आ गए, तब उनके लिए यज्ञ पूजा वगैरह करके, उनके जो बेसिक प्रोसेस थे वो करके उनको प्लीज किया जाता था गॉड को, कि भैया आप ये बंद करो बारिश या बारिश करो। सन गॉड, जो एयर सन वाटर, जितने भी एलिमेंट्स है, मेन एलिमेंट्स, जितने भी नेचुरल चीजें हैं, इन्हीं की पूजा करी जाती थी, एंड दे वर द गॉड्स, दैट्स इट, देयर वाज नथिंग। ये बाद में क्रिएट हुए, बहुत बाद में, ब्रह्मा विष्णु महेश, बाकी जितने भी पुराण हैं ये सारे के सारे बहुत बाद में क्रिएट हुए। ये आप समझ लीजिए लगभग इनकी डेट जो है करीब 6000 साल पहले के आसपास होंगे। उससे पहले जो था इट वाज ओनली ऑल नेचुरल गॉड्स। तो ये और सांख्य दर्शन में कोई गॉड का जिक्र नहीं, किसी भी मतलब किसी दर्शन में नहीं है। उपनिषद में भगवान का जिक्र मिलता है, जो उपनिषद हो गए, पुराण हो गए, ये सारे के सारे। अब इसमें बहुत डिफरेंट लेवल की नॉलेज है, इसको हम अभी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम एक आते हैं परमहंस योगानंद की एक बेसिक बुक है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। उसके अंदर एक ये लाइन है कि चाइल्ड इज बोर्न ऑन दैट डे
and at that hour, when the celestial rays are in mathematical harmony with his individual karma. Last past birth के आपके जो कर्म हैं उनको जब फ्रुक्टिफाई होना है, जब उसका रिजल्ट मिलना है आपको, और कैसा रिजल्ट मिलना है उसके ऊपर आप उस टाइम उस मोमेंट में आप पैदा होते हैं, जब वो सही होती है वो कि आपका रिजल्ट उसका मिलेगा. His horoscope is a challenging portrait revealing his unalterable past. मतलब पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते, एंड प्रोबेबल फ्यूचर रिजल्ट. अनऑल्टरेबल और प्रोबेबल, ये बहुत जबरदस्त वर्ड्स हैं. प्रोबेबल रिजल्ट है, 100% रिजल्ट नहीं है, बट और ये रिजल्ट कैसे चेंज हो सकता है? ये किसी रेमेडी से चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ आपके कर्मों से चेंज हो सकता है. योर ओनली, मतलब एक ही चीज है जो चेंज कर सकती है, दैट इज योर कर्म, नथिंग एल्स. तो कोई भी रेमेडी करके कोई आपका प्लान कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ कर्म करेंगे तभी होगा, अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला. तो ये दैट इज व्हाट परमहंस योगानंद सेड. आई एम नॉट सेइंग दिस, ठीक है, बट दिस इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट. मतलब एंड यू कैन टेस्टिफाई. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस पर बात करेंगे. और सो एनी क्वेश्चन सो फार? एनी क्वेश्चन? हेलो. हाँ जी बोलिए. हेलो. हाँ जी सर, ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होता है ना, ये किस पे डिपेंड होता है? फिंगरप्रिंट पे? ये सब पे ही सारी एस्ट्रोलॉजी जो है वो उस पे ही है. अभी आप नाड़ी पे मत जंप करो, अभी हम करेंगे. अभी हम पहले आप समझ तो लो एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. अब करेंगे सारा कुछ. नाड़ी क्या होता है मैं सारा कुछ समझाऊंगा आपको, बट अभी आपको मैं समझाऊंगा. अभी आपको मालूम है सबलॉर्ड क्या होता है? सबलॉर्ड? हाँ, नक्षत्र का सबलॉर्ड क्या होता है? नक्षत्र लॉर्ड क्या होता है? नहीं पता है. तो फिर जब वो नहीं पता तो इसलिए मैं नहीं बता रहा. अभी आप ठीक है. होल्ड मैं सब बताऊंगा. अब देयर इज अ डिफरेंस. जो हम लोग का इंग्लिश ब्रिटिशीकरण हो गया हमारा पूरे सिस्टम का, तो बहुत सारे वर्ड्स का मतलब हमने इंग्लिश में ले लिया. सबसे पहले आपने पूछा एक विश्वनाथ जी, आपका मैं एक क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होता है. तो मैं आपको बता दूं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज अ टर्म which was coined 30 years of maybe 30-35 years back. जब एस्ट्रोलॉजी को हम ज्योतिष ही बोलते हैं, ज्योतिष होते हैं एस्ट्रोलॉजी. एस्ट्रोलॉजी इज नॉट द राइट वर्ड. Vedic astrology is nothing. There is no astrology written in Ved. Any Ved. There is no astrology. एस्ट्रोलॉजी का कोई जिक्र नहीं है किसी भी वेद में. अब किसी ने वेद नहीं पढ़े, वैदिक एस्ट्रोलॉजी इसलिए टर्म कॉइन हुआ. और वो भी मैं बताता हूँ कैसे. जब 90s में लिबरलाइजेशन हुआ, इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाज अ वेरी देन मार्केट्स खुले, इंडियन मार्केट खुला, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट बहुत मेजर एक्सपोर्ट हुआ. बहुत लोगों ने वर्ल्ड ओवर बहुत लोग आना शुरू हुए इंडिया में. तो जब चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुई, नॉलेज का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ. एंड जब वो एक्सपोर्ट, किसी भी चीज के पीछे आप हैंडीक्राफ्ट लगा दें, इंडियन हैंडीक्राफ्ट या वैदिक लगा दें या ऐसे कोई भी वर्ड यूज कर लें, तो उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी एथेनिसिटी वो बढ़ जाती है. मतलब जस्ट टू मेक दैट पॉइंट कि ये एथनिक है, तो ये एथनिक हो गया और ये बहुत पुराना हो गया, तो वो हो गया. एस्ट्रोलॉजी तो वर्ड भी नहीं था. एस्ट्रोलॉजर वर्ड भी बहुत, मतलब आप खुद ही देखिए आपको कब एस्ट्रोलॉजर याद करिए. बचपन में एस्ट्रोलॉजर था कि ज्योतिष था, या पंडित जी थे जो ज्योतिषाचार्य थे, जो ज्योतिष देखते थे. ज्योतिषी था, एस्ट्रोलॉजर नहीं था. ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर नहीं था. तो एस्ट्रोलॉजर था ही नहीं. एस्ट्रोलॉजर तो अभी आया ना, अभी तो अंग्रेज, क्योंकि हम अंग्रेज हो गए. अभी अंग्रेजी जैसे जैसे बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल हुए, इंग्लिश पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने, और तो हम लोगों के लिए एक ही बात थी, एस्ट्रोलॉजर इज इक्वल टू ज्योतिष. बट एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ज्योतिष. एस्ट्रोलॉजी का मतलब है एस्टर प्लस लॉजिक, विच इज लॉजिक ऑफ स्टार्स या लॉजिक बिहाइंड स्टार्स, और स्टडी ऑफ स्टार्स इज व्हाट एस्ट्रोलॉजी इज. ज्योतिष इज डिफरेंट. ज्योतिष इज ज्योति प्लस ईश, विच वी कॉल इट एज, विच इज डिवाइन लाइट. तो ज्योतिष इज डिवाइन लाइट. तो मैंने आपको जैसे बोला, ज्योतिष इज आपका जीपीएस से आपको कनेक्ट है, तो डिवाइन लाइट आपको रास्ता दिखाने वाली एक साइंस है कि आप कैसे किस रास्ते पे चलें. To tell you the right, to tell you the pros and cons of every step which you take. Not taking the step is still in your hand. जिसको हम फ्री विल बोलते हैं, taking the step will always be in your hand. Situation will be given by astrology. एस्ट्रोलॉजी बताएगी सिचुएशन आने वाली है, सिचुएशन आने वाली है. जैसे बताया ट्रैफिक जैम है, अब आपकी मर्जी है, घर से निकलो मत निकलो. आपने कहा नहीं मुझे तो जाना ही है, जाओ फंसो, योर चॉइस.
सो चॉइस ऑफ डिसीजन विल ऑलवेज बी योर्स, बट क्या डिसाइड करना है, कहाँ अपने आपकी सिचुएशन कैसी रहेगी, बारिश होगी कि नहीं होगी। अब वेदर रिपोर्ट आई है आज बारिश होगी, आपने कहा नहीं होती बारिश, मैं ऐसे निकल जाता हूँ। आप गए, भीग गए बारिश में। एक समझदार था, उसने बोला बारिश होगी, प्रेडिक्शन है, मैं छाता लेके जाता हूँ, नहीं भीगूंगा। जैसी बारिश हुई छाता खोला, नहीं भीगा। चॉइस इज स्टिल योर्स, एवरी टाइम चॉइस इज योर्स। तो वो जो सिचुएशन है वो ज्योतिष बताएगा, और जो सिचुएशन क्यों आती है, क्योंकि सी अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों चीजों में। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष इंडियन है, एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न है। सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, ज्योतिष इज बेस्ड ऑन पास्ट लाइफ। हमारा बिलीफ सिस्टम है, हिंदुइज्म का बिलीफ सिस्टम है कि पास्ट लाइफ से आप, पास्ट लाइफ के कर्मों का फल आप इस लाइफ में मिलता है आपको, एंड देयरफॉर इट इज द सेम सोल व्हिच इज टेकिंग अ रीबर्थ। तो वो रीबर्थ में बिलीफ रखते हैं। जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडाइज्म हो, ये सारे कोई भी जो उसमें नहीं बिलीव करते, रीबर्थ में बिलीव नहीं करते। वो बॉडी को बरी करते हैं और वो सोचते हैं कि सोल जो है, इनका हिसाब होगा, सारी सोल्स का हिसाब होगा जजमेंट डे के दिन। जब भी जजमेंट होगी, कब होगी पता नहीं, इसीलिए उनको बोलते हैं रेस्ट इन पीस। और आजकल हमें भी आसानी पड़ गई है, हम RIP लिख देते हैं। तो वी आर बेसिकली कन्वर्टिंग all Hindus into Islam or Christianity after writing RIP on their death. Anybody who, or in condolences messages. तो कन्वर्जन हमारा बाद में हो रहा है लोगों का, जब वो रेस्ट इन पीस लिखते हैं। रेस्ट इन पीस नहीं होता हमारे यहाँ, इट इज, हम बोलते हैं आत्मा को शांति मिले, मे द सोल, मतलब गेट लिबरेटेड, और आत्मा की शांति इज व्हाट वी से। हम लोग वो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे RIP। इजी है टेक्स्ट करना, कंडोलेंस में आपको फॉर्मेलिटी करना, हम लोग कर देते हैं RIP, बट हम उसका बेसिकली उसका हम रिलीजन कन्वर्ट कर दे रहे हैं करके। सो इट इज नॉट RIP, इट इज ओनली आत्मा को शांति वाली हम बात करते हैं, क्योंकि आत्मा को रीबर्थ करना, आत्मा वापस आएगी, और वापस आएगी। इस लॉजिक पे बेस्ड है पूरा ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी नहीं है इस लॉजिक पे बेस्ड। हमारा काम होता है, हम लोग करते हैं जस्ट अ सेकेंड, वी वर्क ऑन दशा सिस्टम। हमारी जो मेजर जो प्रेडिक्शंस है वो दशा सिस्टम बेस्ड है, और उनका जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में सारा कुछ ट्रांजिट बेस्ड है। तो दूसरी चीज, एस्ट्रोलॉजी जो है वो मून बेस्ड है, और वो ज्योतिष इज मून बेस्ड, एस्ट्रोलॉजी इज मेजरली सन बेस्ड। तो सन के ऊपर, सन इज द प्राइमरी प्लैनेट, हमारे यहाँ मून इज द प्राइमरी प्लैनेट। ये बड़ा डिफरेंस है ये जो एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष के अंदर है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है कि हम पास्ट लाइफ से हम सोल के रीबर्थ की बात कर रहे हैं। हाँ जी रुचिका जी, आप बोलिए। Yeah, sir, I had one question. See, astrology, I understood very well what you explained, Jyotish or astrology में. तो जब हम स्टडी करेंगे, what is it that we are going to focus, और कहीं ना कहीं हमारी पत्री क्या पास्ट लाइफ कर्मा भी इंडिकेट करेगा? कहीं नहीं, 100% करेगा। Okay. कहीं ना कहीं नहीं, बट How do we find that? हाँ, वो उसको एडवांस आप पढ़ेंगे, एडवांस आप करेंगे तो एडवांस में मैं बता रहा हूँ आपको प्रॉपर पूरा एक वो है। नहीं तो मैं यूट्यूब पे, मैंने अभी पीछे जो मेरा क्लास था एडवांस का, उसी पे मोक्ष कर्मा एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। बाकी उसमें भी share the link in the group. आई शेयर द लिंक, बट दैट इज सी योर, उसके लिए पढ़ने के, उसको समझने के लिए आप अगर आप जैसे पूरा पढ़ेंगे, आपको पहले समझ तो आए कि जो हो रहा है आपके साथ, जो हुआ। श्योर सर, बेसिक के बाद। हाँ हाँ, मतलब वो मेरी लास्ट क्लास होती है एडवांस की। Okay. एडवांस कोर्स की लास्ट, वो एडवांस पूरा करने के बाद। I have a lot of interest in past life karma. I read a lot of Brian Weiss. Okay, so which is okay, which is you can always relate to it, but because lot of नहीं, just something in terms of interest. So sir, when we understand it from you, आप हमें ज्योतिष के point of view से बताएंगे। बस सब कुछ ज्योतिष ही पढ़ेंगे हम लोग, कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ने वाले, हम ज्योतिष ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर क्या मेरी जो इंडियंस जो हम सॉफ्टवेयर में अपना, अगर लेट्स से वी टेक आउट एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, राइट, ऑल दीज सॉफ्टवेयर्स व्हिच आर देयर, तो वो हमें कौन सा दिखाएगा? ज्योतिष नहीं दिखाएगा, ज्योतिष ही दिखाएगा। एस्ट्रोलॉजी तो इज अ इंग्लिश नेम टू इट। अच्छा, इट इज जस्ट वो क्या, सभी लोग एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं तो क्या कर सकते हैं आप?
अब ज्योतिष साउंड्स लिटिल डिग्रेडेड, ज्योतिष आप लिखेंगे अपने आगे तो वो लगेगा कि थोड़ा सा ये 500 रुपए वाला काम है, एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे तो 5000 वाला लगेगा। तो ये फर्क है। तो अपने आप को सी वेयर सर्कल विच यू आर मूविंग इन, और जो भी जहाँ पे अपने आप को आप प्रेजेंट करेंगे तो वो आप ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष शास्त्री लिखे हुए, ज्योतिष आचार्य लिखा हुआ आपका वो थोड़ा सा वो सिस्टम में मैच नहीं करता आजकल, तो वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, ठीक है। और जबकि ये और कहीं कहीं वो ज्यादा उसको वैल्यू देंगे, साउथ में आप चले जाए वहाँ पे ज्योतिष आचार्य लिखा हुआ वो ज्यादा वैल्यूएबल एस्ट्रोलॉजर। सो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू वांट टू पब्लिसाइज योरसेल्फ। होता कुछ नहीं है, कोई आचार्य नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इट इज ओनली नॉलेज व्हिच यू गेन। सब लोग सर्टिफिकेट्स के पीछे भागते हैं, सब सर्टिफिकेट क्या करना, सर्टिफिकेट आप डॉक्टर से जाके उसकी डिग्री पूछते हैं कि डिग्री दिखाओ तब मैं आपको अपना हाथ दिखाऊंगा या अपनी दवाई दिखाऊंगा। डॉक्टर का बोर्ड देखा आप घुस गए, डॉक्टर का बोर्ड दिखा आप घुस गए कि मेरे को खांसी है बुखार है, जो उसने दवाई लिख के दे दी, और कंपाउंडर भी लिख के दे देता उतनी दवाई, उतना दे, उस डॉक्टर से भी मत पूछो, आप केमिस्ट से पूछ लो वो दे देगा। तो ये रिजल्ट क्या है, वो आप क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और वो ऐसे नहीं आएंगी, किसी सर्टिफिकेट से नहीं आएंगी। सर डॉक्टर में भी रेफरल बिजनेस है, सारे रेफरल है, सारे रेफरल है, सभी कुछ रेफरल बिजनेस ही है ना। अगर किसी का एक प्रेडिक्शन ठीक होता है तब वो 4 लोगों को रेफर करता है, राइट, और फिर जब वो रेफरेंस का प्रेडिक्शन ठीक होता है फिर वो और 4 का देगा। एंड मैं आपको सिर्फ एक चीज में रूल्स में एक चीज लिखना भूल गया, ऑल प्रेडिक्शंस आर 50% करेक्ट। आप कोई भी प्रेडिक्शन, हाँ 50% कोई भी आप कोई सा प्रेडिक्शन करो या तो सही होगा या गलत होगा, 50% प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी इज 50% दैट इट विल बी करेक्ट। आप सुबह से शाम तक 10 लोगों का हॉरोस्कोप देखो, कुछ भी बोल दो, प्रोबेबिलिटी इज 50% वो ठीक हो जाएगा। पूछेगा मेरा भी शादी कब होगी, बोलो अगले साल हो जाएगी, कहीं ना कहीं या नहीं होगी, खाने में लग जाएगा। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज है, मैथमेटिक्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ हिट्स यू डू, बस लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है। अगर 50% ऑल प्रेडिक्शंस आर करेक्ट तो हम 50% वाले में, इसीलिए जब मैं न्यूमरोलॉजी में करता हूं तो मैं उसमें ये बहुत यूज करता हूं, 50% एवरीथिंग इज करेक्ट व्हाटएवर यू से, बट वी आर नॉट प्लेइंग द 50% गेम। हम प्ले कर रहे हैं 80% 90% वाला गेम, कि 90% 80% का आपकी जो आपने बोला वो ठीक है, वो प्रेडिक्शंस वाली चीज है। So that is the difference between ज्योतिष and astrology, very important for, क्योंकि बेसिक है। अभी आप बहुत सारे अलग अलग सबके वो हैं, यू नो बहुत अलग अलग नोशंस हैं, आपने कुछ और सोचा हुआ है, कुछ और सुना हुआ है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, तो एक क्लियर होना चाहिए कि क्या व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। तो एस्ट्रोलॉजी पढ़ने हम जाएंगे, एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ेंगे सबसे पहले। तो एस्ट्रोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम हमारा, ये थोड़ा एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं इसके बारे में आज, कि एस्ट्रोनॉमी क्या है सोलर सिस्टम में। अब सोलर सिस्टम आपने देखा होगा, सभी ने पढ़ा भी होगा, पता भी है सबको सोलर सिस्टम क्या है। देयर इज अर्थ, देयर इज सन एंड देयर इज planets are revolving around the sun, that is what solar system is। अब ये 2 तरीके का सिस्टम है, एक जियोसेंट्रिक है, एक हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक में sun is considered as the center of universe where every planet is revolving around sun। geocentric में earth is considered as the planet is the central planet, center of universe, and every planet is revolving around, even sun is revolving around sun, earth। अब ये हम जो यूज करते हैं, हम जियोसेंट्रिक यूज करते हैं। क्यों जियोसेंट्रिक यूज करते हैं? क्योंकि हम अर्थ पे बैठे हैं, we are there and we are seeing the universe while from earth, we are not seeing it from sun, we are not seeing it from any other planet, हम अर्थ से देख रहे हैं, इसलिए हम जियोसेंट्रिक सिस्टम जो है हमारा वो हम फॉलो करेंगे। अब इसमें सन भी बीच में आ गया, तो अर्थ और सन के बीच में 2 प्लैनेट्स आते हैं, मरकरी एंड वीनस। तो इनको हम इंफीरियर प्लैनेट बोल सकते हैं, इंटीरियर प्लैनेट बोल सकते हैं, अलग अलग नाम है, बट ये सन और उसके बीच में, अर्थ के बीच में 2 ही प्लैनेट आते हैं, मरकरी एंड वीनस। तो ये सन अर्थ और सन के बीच में ये इंफीरियर और इंटीरियर प्लैनेट्स हो गए। फिर देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे प्लैनेट्स हैं एक्सटीरियर प्लैनेट्स, और जो सन के बाहर है, अर्थ और सन के बाद में पड़ेंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे सारे डायग्राम में, तो दैट इज मरकरी, वीनस
सॉरी, मरकरी, वीनस एंड मार्स, ये 3 प्लैनेट है जो इसमें, मार्स भी बाद में आएगा, मार्स इज आल्सो हियर ओनली. सो मरकरी, वीनस, दे आर 2 planets which will be between sun and earth, and Mars, Saturn and your Jupiter, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी है, वो भी सब बाद में आएंगे. हमारे ज्योतिष में हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को नहीं यूज करते. एक्सट्रीम केसेस में यूज करते हैं. जब हम प्लैनेट्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे उनका सिग्निफिकेंस क्या है. एक्सट्रीम केसेस में ही यूज होती है, अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में नहीं यूज होते. नॉर्मल लाइफ में हम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को बिल्कुल भी यूज नहीं करते. उसकी जगह आपने सुना होगा 2 हम यूज करते हैं. अभी हम राहु केतु की बात करेंगे, बट अगर आप ये तो हम ये वाले प्लैनेट्स यूज करते हैं. अब आपको क्या करना है, अब आपको एक ये पेन पेपर पे अगर है आपके पास तो लिख लीजिए. इस ऑर्डर को याद करना है. सारे 9 प्लैनेट्स के नाम याद करने, बट वो इसी ऑर्डर में होने चाहिए. सबसे पहले केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, सर आपने कोई कोड वर्ड बनाया हुआ है इसका? सैटर्न, मरकरी. कोई कोड वर्ड नहीं, 9 प्लैनेट का नाम है. आप लिखेंगे बड़ी जल्दी याद हो जाएंगे. कोई कोड वर्ड अपने आप ही बना लो, KVS, MM, RJS, कुछ भी बना लो. लोग बड़े बड़े तरीके के नाम बनाते हैं कोड वर्ड आपको, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. 2 मिनट में याद हो जाएगा. सो केतु, वीनस, मतलब दिस इज, इसी ऑर्डर में याद करना है आपको. जो भी याद करना है इसी ऑर्डर के अंदर याद करना है. सो ये शॉर्टकट्स हैं, ये आपको आगे आसानी करेंगे. पूरे टाइम यही हमने इसी ऑर्डर में काम करना है. हमारी जितनी दशाएं हैं वो भी इसी ऑर्डर में चलेंगी, नक्षत्र भी इसी ऑर्डर में चलेंगे, हर चीज इसी ऑर्डर में चलेगी. तो सबसे पहले केतु आएगा, फिर वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी. ये होमवर्क है, समझ लीजिए. अगली क्लास से पहले आपको याद होना चाहिए. लिख लिया आप लोगों ने? हो गया. केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी. ठीक है. तो ये आप इसको इसी में याद कर लीजिएगा, क्यों और किस लिए, तो ये आप बाद में आपको समझ आएगा. अब राहु और केतु पे हम आए थे. राहु केतु एक्चुअली है क्या? सो राहु एंड केतु, हम लोगों ने माइथोलॉजिकल स्टोरी सभी ने सुनी होंगी राहु एंड केतु के ऊपर. कि ये नहीं सुनी तो मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट. सागर मंथन हुआ था जब देवताओं और असुरों के बीच में सागर मंथन हुआ था, तो बहुत सारी चीजें निकली थी. उसमें से निकला था अमृत भी. तो एक राक्षस ने, जो वसुकी नाग, जिसको एक राक्षस था वसुकी करके, तो बेसिकली सांप था. तो उसने एक देवता, एक अप्सरा का कोई रूप धारण करके देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया, और उसको ने एक अमृत चख लिया. और उन लोगों को पता लग गया कि ये राक्षस है. तो अमृत की एक बूंद चखी, एक बोतल चखी, पता नहीं, बट अमृत चख लिया उसने, और वो अमर हो गया. अब ये पता लग गया देवताओं को कि इसने अमृत चख लिया. तो विष्णु जी गुस्सा हो गए. उन्होंने अपना चक्र निकाला और उसका गला सर धड़ से अलग कर दिया. अब ये जो गला अलग हो गया, जो सर था, दैट वाज राहु, और जो धड़ है वो केतु है. तो ये बोला जाता है कि राहु केतु हवा में घूम रहे हैं, हमेशा घूमते रहेंगे, और ये हवा में ही है. सो ये राहु केतु, इसलिए इनका ये ग्रह माने गए. एक्चुअली दे आर नॉट एनी बॉडी, कोई हेवनली बॉडी नहीं है. ना कोई प्लैनेट है, ना एस्ट्रॉइड है, ना मीटियोर है, ना कॉमेट है, कुछ भी नहीं है. इमेजिनरी पॉइंट है. इमेजिनरी पॉइंट कैसे है, कौन सा पॉइंट है? तो ये जब भी एक मून जो है अर्थ के आसपास चक्कर काटता है, अर्थ सन के आसपास चक्कर काटती है, रेवोल्यूशन बोलते हैं. और ये मून जो है, एक इसको आप समझ लीजिए रोटेशन समझ लीजिए, या इसका मून का एक रोटेशन समझ लीजिए, इसके अर्थ के आसपास जो चलता है. तो जब ये चलेगा अर्थ के आसपास मून, तो ये नीचे वाला जो आता है, ये दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये साउथ टू नॉर्थ की तरफ जा रहा है. तो ये नॉर्थ साइड जो है इसका ये है. तो नॉर्थ साइड पे जब नॉर्थ नोड बोला जाता है, नॉर्थ पे जब वो इंटरसेक्शन है, व्हेन दिस इज इंटरसेक्टिंग एलिप्टिकल पाथ, दोनों के एलिप्टिकल पाथ जब एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, तो वो जो साउथ नोड है, साउथ नोड इज नोन एज केतु,
नॉर्थ नोड इज नोन एज राहु। तो नॉर्थ नोड आप इसको, ये दिस इज नॉर्थ नोड नीचे एंड साउथ नोड इज ऊपर, ये केतु। ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो हैं या नोडल पॉइंट्स जो हैं, या आप समझिए ये नोड्स, आप इनको इसीलिए बोला जाता है, ये दिस इज व्हाट राहु केतु इज, एंड दे आर ऑलवेज 180 डिग्री अपार्ट। मतलब जो अगर ये हॉरोस्कोप में कौन से हाउस में, तो ये बिल्कुल ऑपोजिट हाउस में दोनों जो है वो प्लेस्ड होंगे हमेशा। तो नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड दिस आर राहु एंड केतु। एंड ये राहु केतु जो है ये कुछ है नहीं, कोई बॉडी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग प्लैनेट की तरह इनको कंसिडर करते हैं। प्लैनेट का ही दर्जा दिया हुआ है ज्योतिष में इस दोनों नोडल पॉइंट्स को। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, वहां पर यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को इंपॉर्टेंस दी जाती है। राहु केतु इज जस्ट कंसिडर्ड एज नोड, उतना इंपॉर्टेंस वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिया हुआ। बट इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि हमारे यहाँ राहु केतु कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन बहुत बड़ी आफत का कारण हर एक की लाइफ में है। मतलब अगर आप किसी ज्योतिष के पास गए हैं और उसने बोल दिया कि वो राहु खराब है, राहु ने ये कर दिया, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है कि राहु तो खराब ही करेगा। या शनि का, मतलब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में राकेश बोलता हूँ, राहु केतु शनि। तो राकेश जो है हमारे ये प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट्स में आते हैं, तो ये प्लैनेट प्रॉब्लम करेंगे क्रिएट। तो राहु केतु एक्चुअली तो कुछ नहीं है तो सिर्फ नोडल पॉइंट, बट हम उन्हें प्लैनेट्स मानते हैं। ज्योतिष में उनको एज अ प्लैनेट रिकॉग्नाइज किया गया, एंड उसका हम एंड दैट प्लैनेट हैज एन इमेंस इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स, ऑन एवरीबॉडीज लाइफ, दोस पॉइंट्स। तो है इम्पैक्ट है, और देखा भी गया, आज से नहीं हजारों साल से देख रहे, तो इसलिए हम उनको प्लैनेट्स ही मानते हैं। सो एनी क्वेश्चन सो फार? Sir, my question. अगर your number is only a Rahu or a Ketu number, does that impact the effect? उसका भी वो कोई राहु केतु आपने जो लोशु पढ़ा उसके अंदर अनफॉर्चुनेटली वो इम्प्रोवाइज लोशु था। राहु केतु लोशु में कुछ नहीं है, यूरेनस और नेपच्यून है। पाइथागोरस पे भी राहु केतु नहीं है, यूरेनस और नेपच्यून है न्यूमरोलॉजी के अंदर। अनफॉर्चुनेटली इंडियन कंसेप्ट में समझाने के लिए 4 नंबर को राहु और 7 नंबर को केतु कर दिया, जबकि वो यूरेनस और नेपच्यून है। तो वो क्या उसमें है, उसका कोई मतलब, वो उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग न्यूमरोलॉजी को बिल्कुल अलग रखेंगे अभी, इससे कोई उसका लेना देना नहीं है। राहु केतु जो है वो सिर्फ हम फ्रॉम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी के उसमें। तो अभी आप उसको न्यूमरोलॉजी को मिक्स मत करें इसमें, क्योंकि लोशु बहुत ही क्योंकि देरा लोशु ने तो जब बनी होगी ग्रिड, और जब उसकी न्यूमरोलॉजी डिस्कवर हुई होगी तो वो एक हुई होगी। आज की डेट में लाखों उसके वर्जन्स हैं मार्केट में, किसने क्या पढ़ा और किसने क्या पढ़ाया उसके बारे में कोई गारंटी नहीं है। तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। आप बस अभी हम एस्ट्रोलॉजी पे ही फोकस करें, न्यूमरोलॉजी ना बीच में डालें, तो सही। कोई नंबर्स नहीं है, नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अब हम ग्रहों, हम सीरियस बात कर रहे हैं, हम लोग अब ग्रहों पे बात कर रहे हैं, हम एक्चुअल राहु केतु की बात कर रहे हैं, नंबर से कोई रिलेशन नहीं कर रहे हैं। अब ये डायग्राम आप बनाना चाहे बना लें, या समझ लेते हैं इस डायग्राम को। ये डायग्राम जो है ये अर्थ है बीच में। सर आप ये प्रेजेंटेशन भेजेंगे ना हमें? हाँ मैं भेजूंगा, बिल्कुल भेजूंगा। अब सन यहाँ पर है, मरकरी वीनस बीच में, मार्स जुपिटर सैटर्न यहाँ पर है। तो ये 9 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब है क्या एक्चुअली जोडियक क्या है? एनी आइडिया जोडियक क्या है? व्हाट इज जोडियक? It is the constellation of stars, मतलब अरेंजमेंट है ना उस हिसाब से। हाँ बिल्कुल अरेंजमेंट है। अब आपको जो हम लोगों ने पीछे एक डायग्राम, हाँ बोलिए बोलिए उस्ताद, क्या है आप बताइए। जोडियक का मतलब राशि होता है ना? हाँ जोडियक का मतलब राशि क्या होता है, राशि क्या है? चलिए अभी हम देखते हैं, ये सोलर सिस्टम है हमारा, ठीक है। ये जो सोलर सिस्टम घूम रहा है ऐसा ये इलिप्टिकल पाथ में, इसका विड्थ जो है ना, मतलब ये टोटल जो एरिया में घूम रहा है, किस एरिया में घूम रहा है, बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, दैट इज ओनली 16 डिग्रीज। 8 डिग्री ऊपर 8 डिग्री नीचे, कुछ लोग 9 डिग्री बोलते हैं, कुछ लोग 16 डिग्री बोलते हैं, हम 8 डिग्री पकड़ लेते हैं, 16 डिग्री। सो इट इज ओनली 16 डिग्रीज ऑफ द एंटायर यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट 16 डिग्री, वही सोलर सिस्टम हमारा, जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्स।
यूनिवर्स इज अब तो यूनिवर्स को बहुत मानने लगे, तो ब्रह्मांड उसी को बोला जाता था, वो ब्रह्मांड है। सोलर सिस्टम को ब्रह्मांड नहीं बोलते थे, यूनिवर्स को ब्रह्मांड बोलते हैं। तो वो इट इज ओनली 16 डिग्री, ये जो बैंड है, जिस बैंड में घूमते हैं, दैट बैंड इज ओनली 16 डिग्रीज, 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री साउथ। अब हमारे यहाँ उस टाइम पे मतलब मुझे नहीं मालूम कौन सी वो थी, टेलीस्कोप थे इनके पास, 5,000 ऋषि मुनि के पास, जिन्होंने ये लिखा, पूरी एस्ट्रोलॉजी डिस्कवर करी। किस लेवल की कैलकुलेशन थी इनकी, इज सरप्राइजिंग। इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन उस टाइम पे आज के आयांश की कैलकुलेशन मौजूद है, करा हुआ है उन लोगों ने। मतलब पूरा जो एक्लिप्स की जो कैलकुलेशन है वो 5-4 साल पहले करी हुई है, आर्यभट्ट ने करी हुई है। वो आर्यभट्ट तो और पहले के, तो आर्यभट्ट की कैलकुलेशन में सोलर एक्लिप्स की कैलकुलेशन एग्जैक्ट डेट की आज तक की है, ठीक है। तो वो सारी प्री डिफाइंड थी, वो कैसे करा था पता नहीं, और कैसे इन लोगों ने देखा। उस टाइम पे पोल्यूशन बिल्कुल ही नहीं होगा, तो शायद या स्टार बड़े दिखते होंगे, या अर्थ कैसे दिखती थी आई डोंट नो, या कौन सा ये यूज करते थे। सो इन लोगों ने, जैसे अब अर्थ पे बैठे हम लोग, ऊपर देखा, आसमान में देखा, तो पूरा स्टार्स और प्लैनेट्स देखे। अब इतना बड़ा यूनिवर्स है, उसको कैसे करें हम, उसको कैसे डिवाइड करें, ऐसे तो पढ़ नहीं सकते पूरे को। तो उन्होंने उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट 360 डिग्री उसका पूरा हुआ है। पेरिफेरी जो है वो 360 डिग्री है, जो पूरा सर्कल है, सर्कल कहाँ पे मालूम है, डायमीटर जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री का एक स्फीयर समझ लीजिए, सर्कल समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, या इमेजिनरी एक सर्कल है, वो 360 डिग्री का था। यूनिवर्स हमारा पूरा 360 डिग्री, यूनिवर्स सोलर सिस्टम हमारा 360 डिग्री का। उस 360 डिग्री को इक्वल 12 हिस्सों में बांट दिया। 12 हिस्सों में बांटा तो मतलब 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्री का एक जोडियाक। अब जोडियाक जो है वो कैसे आए, वो देखा उन्होंने ऊपर स्टार में, एक स्टार्स की फॉर्मेशन देखी। और पुराने जमाने में तो आदमी जानवर ही होते थे, यही देखते थे, और तो कुछ होता नहीं था, और कोई पैटर्न था नहीं। तो जैसे जैसे दिखे वैसे वैसे उनके नाम पड़ गए। अब जैसे पहला जो दिखा, इट इज नॉट नेसेसरी ये पहला है, बट ये पहला क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे। हम पहले क्यों लिखते हैं एरीज को। तो एरीज को हम फर्स्ट सनसाइन मानते हैं। एरीज इज 0 to 30 डिग्रीज में एरीज आया, तो एरीज हो गया एक सनसाइन। अब एरीज क्या था, एरीज इज इन शेप ऑफ भेड़ की शेप में है, जिसको हम हिंदी में मेष राशि बोलते हैं। तो वो एरीज का मतलब एक शेप है, सिंबल है, में एक ऐसा रैम की शेप में, भेड़ की शेप में, और उसके 2 सींग निकले हुए हैं ऐसे। तो स्टार्स की फॉर्मेशन वैसी दिखी, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया, ये मेष राशि है, ये एरीज है। फिर सेकेंड उसको दिखा, वो बुल की शेप में दिखा, तो वो टॉरस हो गया या वृषभ राशि हो गया। फिर उस जेमिनाई दिखा, फिर कैंसर एक क्रैब दिखा, फिर लियो एक शेर दिखा, वर्गो में लड़की दिखी, लिब्रा में तराजू दिखा, स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियन ही दिखा, बिच्छू दिखा, सैजिटेरियस में ऐसा दिखा कि कोई तीर मार रहा है, ऐसी कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस में कलश वो दिखा, कुंभ राशि जो एक्वेरियस है उसमें डालते हुए दिखा, पाइसेस में 2 मछलियां दिखी। तो इस तरीके की ये अलग अलग है, बट दीज आर ऑल 30 डिग्रीज ईच। हर जोडियाक का जो स्कोप है वो 30 डिग्री है, तो हर समय 30 डिग्री ही रहेगा, ऑलवेज इट इज 30 डिग्रीज। अब आपको जो याद करना है आज के, आपको हिंदी नाम मालूम है सबको इसके, सभी को इसके हिंदी, सारी राशियों के हिंदी नाम मालूम है? नो सर। तो इसको आपको हिंदी के नाम भी आप पढ़ लें, क्योंकि सामने जब आप आगे करेंगे तो वो राशियां पूछेंगे, तो राशि हिंदी में ही जनरली लोग बताते हैं। तो एरीज इज मेष, टॉरस इज, ये आपको हिंदी वैसे गूगल पे कहीं भी मिल जाएगा, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा। टॉरस को हम वृषभ बोलते हैं, जेमिनाई को हम लोग मिथुन राशि बोलते हैं, कैंसर कर्क है, लियो सिंह राशि है, वर्गो को हम कन्या राशि बोलते हैं, लिब्रा इज तुला राशि। ये हम जब राशियां पढ़ेंगे डिटेल में तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा, कोई उसमें इशू नहीं है। स्कॉर्पियो इज योर वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस इज धनु, कैप्रिकॉर्न इज मकर राशि, एक्वेरियस इज कुंभ राशि, पाइसेस इज मीन राशि। तो ये सारे के सारे नाम, एक और होमवर्क है, ये सारे नाम आप लिख लीजिए, इनको इसी ऑर्डर में याद करना है, और ये नाम नहीं याद करने, नंबर याद करने।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में पूछूं 8 नंबर का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे स्कॉर्पियो। मैं पूछूं 4 नंबर का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे कैंसर। इसी तरह 7 नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे लिब्रा। तो ये आपको नंबर याद करने हैं सबके, राशि का नाम के कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है, वो नंबर आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। एरीज इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब ये आपको नंबर आप लिखे हुए मिल जाएंगे आपको, अगर वैसे लिखने हैं तो वैसे आप लिख सकते हैं, मैं आपको अलग से लिख के दे देता हूँ। बट ये नंबर आपको, यू गेटिंग मी, आपको आइडिया लग गया क्या मैं कह रहा हूँ? Yes, sir. Yes. ये नंबर याद होने चाहिए। 5 नंबर में बोलूँ तो आप बोलो लियो। लियो। ठीक है, लियो हो गया, सिंह राशि हो गया, हिंदी इंग्लिश कोई भी चलेगा, बट यू हैव टू नो एग्जैक्ट नंबर। नंबर पता होना जरूरी है, क्योंकि हॉरोस्कोप में नंबर लिखा होगा, राशियां नहीं लिखी होती। नंबर याद नहीं होगा तो फिर वो प्रॉब्लम, फिर हॉरोस्कोप में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या कौन सा हाउस, क्या वो क्या चीज। तो ये नंबर याद होना बहुत जरूरी है। तो 2 होमवर्क है आपको, प्लैनेट्स का ऑर्डर याद करना। ज्यादा होमवर्क मैं दूंगा नहीं, बस इतना ही है। इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा और भी, बट ज्यादा आपको जो करना है वो यही करना है। बेसिक प्लैनेट्स का जो ऑर्डर हमने बात करी, केतु वीनस सन मून मार्स वाली, वो वाला आपको करना है। उसके बाद ये याद करना है, नंबर याद करना है। हर राशि का नंबर आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब यही जो राशियां हैं, 30 डिग्री तो हमने डिवाइड कर दिया। अभी 30 डिग्रीज में शायद इनको तसल्ली नहीं पड़ी, हमारे जो पुराने एस्ट्रोनॉमर्स थे, इनको कुछ और दिखा साइंस के पीछे, और भी स्टार्स दिखे, और भी कॉन्स्टलेशन दिखे। उन कॉन्स्टलेशन को बोला गया नक्षत्र। नक्षत्र जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में, तो तब हम नक्षत्र की बात करेंगे। नक्षत्र क्या है, तो वो नक्षत्र बोलेगा। वो नक्षत्र जो है वो 27 है इन टोटल। वैसे 28 बोले जाते हैं, 28 देयर आर 28 नक्षत्र, बट हमारे ज्योतिष में हम 27 नक्षत्र की ही बात करेंगे, और 27 नक्षत्र ही है जिनको हम बोलेंगे। एक अभिषेक नक्षत्र है जो कि डिफरेंट है, और इसमें बड़ी सरप्राइजिंग है, जितने भी नक्षत्र हैं उन सबके नाम फीमेल नाम से हैं। सारे नक्षत्र फीमेल नेम पे हैं। एक अभिषेक नक्षत्र है जो कि मेल नेम पे है। तो वो हम अभी हर नक्षत्र के नाम पे नहीं जा रहे, ना आपको याद करने की जरूरत है। हम नाड़ी जब हम बात करेंगे तो उसमें ये नक्षत्र के नाम की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रेडिक्शन में थोड़ी अब ये बात है ना, अब उतना आप भी पढ़ जाएंगे कि आप हॉरोस्कोप देख के बता रहे हैं अच्छा कौन सा शनि अष्टम भाव में बैठ के वक्री हो गया है, या कौन सा प्लैनेट क्या हुआ है। वो ऐसा लोग बोलते हैं तो हम लोग वही डर जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता वो लैंग्वेज क्या है। उस लैंग्वेज में अगर आपने कभी कुछ भी बात सुनी हो, किसी की भी बात सुनी हो जो समझ नहीं आई हो, यू कैन ऑलवेज आस्क। So equal distribution of universe, of your solar system, of your sky is your zodiac। 12 zodiac है, उन्हीं 12 zodiac के बीच में 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र। तो 13 डिग्री 20 मिनट्स का एक आएगा, वो नक्षत्र जब हम पढ़ेंगे तब हम उसमें बात कर लेंगे। तो ये 2 चीजें मेन हैं जो आपको याद करनी है आज के दिन में। तीसरी चीज जो है, हम एक ब्रीफ पे शुरू कर देते हैं। चलो आज चूंकि आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी में मेरा मानना ये है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने पढ़ा है और अगर आपने हॉरोस्कोप नहीं बनाया अपने हाथ से, तो फिर एस्ट्रोलॉजी शुरू नहीं। ठीक है, तो हॉरोस्कोप बनाना, जो हॉरोस्कोप क्या है, हॉरोस्कोप क्या चीज है, वो समझना जरूरी। तो लेट्स मेक अ हॉरोस्कोप। क्या होता है, हम उस पर बात करते हैं। ये बहुत, तो ये बड़ा मेरे को खुद बड़ी वो थी जल्दी सीखने की, ये ऐसे कैसे बनाते हैं ये और क्या है। और हमारे पास टूल्स है बनाने के, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं बनाने की। आपको ऐसा एक स्क्वायर बनाना है। ठीक है, ये आपने स्क्वायर बनाया, और फिर उसके अंदर आप इसको आप ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं इन इक्वल पार्ट्स। मैं ये आपको नॉर्थ इंडियन स्टाइल का हॉरोस्कोप बता रहा हूँ। उसमें अलग अलग स्टाइल है, साउथ में अलग स्टाइल का होता है, नॉर्थ में अलग होता है। और
ये आपका बन गया। दूसरा आपने बनाना है इसके अंदर, इसमें हम लाइंस ही डाल देते हैं। So this is a horoscope. हॉरोस्कोप का मतलब होता है होरा प्लस स्कोपस, ठीक है। होरा मतलब आर, किस टाइम पे आदमी, जिस जो टाइमिंग है, होरा का बेसिकली मतलब एक आर है, 1 आवर जिस टाइम पे होता है। तो ये आप इस तरीके से कैसा यू कैन क्रिएट अ हॉरोस्कोप इस तरीके ऐसे। अब हमने पढ़ा है कि 12 वो थे, 12 साइंस हमने पढ़े, 12 जोडियक से 12 जोडियक साइंस जो थे। अब 12 जो साइंस हैं उसको हमने प्लॉट करना है। अभी क्या है, जब बच्चा पैदा हुआ तो हमने ऊपर देखा, वो हॉस्पिटल की छत पे खड़े होकर देखा, किधर भी देखा इमेटीरियल, बट हमने ऊपर देखा कि क्या है, और एक स्क्रीनशॉट ले लिया। जैसे ही पैदा हुआ एक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आजकल स्क्रीनशॉट का टाइम है, उस टाइम पे कैसे लेते थे, बट जिस टाइम पे पैदा हुआ एक हमने स्काई का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब स्क्रीनशॉट तो ले लिया, उसमें तो स्टार्स और प्लैनेट्स और वो सब दुनिया भर की चीजें, उसको प्लॉट कैसे करेंगे कागज पे, समझेंगे कैसे? उसको कागज पे समझने के लिए हमें एक हॉरोस्कोप, एक बेसिक एक चार्ट बनाना पड़ेगा कि हम कैसे प्लेस करें, किस चीज को कहाँ प्लेस करें। भाई हर एक चीज को तो हमने वो खींच के देख लिया, फोटो खींच ली, सब कुछ हो गया, और इसको हमें अब प्लेस करना है। ड्राइंग बना ली, अब ड्राइंग बना के उसके अंदर हमें डालना है। अब जो डालना है, चार्ट बनाना है, वो कैसे कैलकुलेशन करनी है, दो इसमें दो बड़े, इसको बनाने के दो पोर्शन है। अब ज्योतिष को समझने के लिए, ज्योतिष में हम दो मेन चीजें हम कह सकते हैं, दो तरीके की ज्योतिष हम बोल सकते हैं। एक होता है, एक पार्ट है, 2 पार्ट्स ऑफ ज्योतिष जिसे बोलेंगे। एक पार्ट है गणित, और दूसरा गणित ज्योतिष, एक है फलित ज्योतिष। गणित का मतलब हो गया कैलकुलेशन। सो जब तक कंप्यूटर्स नहीं आए थे, जब तक सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, तब तक सबसे ज्यादा जोर जो था वो गणित में ही था। तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ इंजीनियर्स एंड साइंस बैकग्राउंड पीपल इनटू एस्ट्रोलॉजी, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी। सारे इंजीनियर्स जो होते थे उनको एस्ट्रोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट था, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी थी। तो वो क्यों? क्योंकि उनकी वो सब कैलकुलेशंस पे थे कि किसकी कैलकुलेशन ज्यादा एक्यूरेट है। एफेमेरीज या पंचांग देख के उस पर कैलकुलेट करना कि क्या चीज की, किस चीज की कैलकुलेशन, किसकी कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट है, क्या कैलकुलेशन करी कि एग्जैक्ट हम कैलकुलेट कर पाए कौन सा स्टार कौन से नक्षत्र में, किस राशि के अंदर है, कहाँ पर है, क्या चीज है, वो सारी कैलकुलेशंस करनी। तो वो गणित वाला पार्ट था। अब क्या आज की डेट में देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग टाइम ऑन गणित। मैं भी कभी शायद एस्ट्रोलॉजी सीखता ही नहीं अगर मेरे को गणित में टाइम लगाना पड़ता, क्योंकि मेरी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है। तो गणित क्या, और इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अब हमारे लिए आसान होगी, हमारी लाइफ आसान है। फ्री में सारे सॉफ्टवेयर गणित की कैलकुलेशन करके दे देते हैं। और मजे की बात यह है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर से, कहीं भी, किसी भी फ्री वेबसाइट से आप अगर अपना हॉरोस्कोप डाउनलोड करेंगे, कोई भी हॉरोस्कोप में गलती नहीं होगी। सभी सारे के सारे वेबसाइट जो है, आपका लग्न चार्ट जो बेसिक चार्ट है, उस चार्ट की कैलकुलेशन एकदम एक्यूरेट आएगी, सेम चार्ट आएगा सब जगह से। सो व्हाई Sir, डू which आई, one do you recommend? अभी तो आप एक काम करिए, एस्ट्रो सेज कर लीजिए डाउनलोड, और एक Astro उसके Sage. एस्ट्रो सेज की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन में, और उसी पे अपना आप कर लीजिए, निकाल लीजिए अपना हॉरोस्कोप, और उसको बना लीजिए कागज के ऊपर। अपनी जो भी कॉपी है, जो भी रेफरेंस आप, जो भी नोट्स आप जहाँ ले रहे हैं, उस पर आप एक यू कैन ड्रॉ हॉरोस्कोप, या हाथ से बनाना। मजा तभी आएगा जब इसको आप हाथ से बनाएंगे, ठीक है, कि वो फील ही नहीं आती, वो आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उसका फील ही नहीं आएगा जब तक ये हाँ हॉरोस्कोप सर, आपने हाथ खुद से हाथ से नहीं बनाएंगे। बनाया। हाँ। हाँ, हॉरोस्कोप हाथ से नहीं बनाया मजा नहीं आएगा। तो हॉरोस्कोप जितने हाथ से बना सकते हैं उतने बनाएंगे। तो ये एक्चुअली वो फील आता है, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आता, मजा ही नहीं आता। मैं भी अभी व्हाइट बोर्ड पे ही जनरली इसको दिखाता हूँ। अभी मैं इस पे दिखा रहा हूँ, इट इज मोर कन्वीनियंट फॉर मी एंड इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। अदरवाइज बोर्ड पे बनाना और फिर उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा
टिपिकल हो जाता है। तो ये दिस इज इजी फॉर मी, तो मैं इसको थोड़ा सा इजी ले रहा हूँ, बट आप लोग हाथ से बनाइएगा इसको पूरे हॉरोस्कोप। तो अब जैसे हमने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को हमने प्लॉट करना है पेपर के ऊपर। कैसे प्लॉट करेंगे भाई? 12 राशियां थी, 12 राशियां मेन है, सारे प्लैनेट भी उसी उसमें है, 12 राशियों के साथ अंदर ही है, 12 राशियों के अंदर ही नक्षत्र हैं, 12 राशियों के अंदर ही सारा सोलर सिस्टम हमें दिख रहा है। अब हम उसे प्लॉट करेंगे तो हमें उनके 12 राशियों को 12 घर तो देने पड़ेंगे भाई, हर एक को एक एक घर चाहिए हर राशि को, तो उसलिए हमने पूरे 12 घर बना दिए। अब जिसमें 12 घर हैं, दिस इज हाउस नंबर 1, दिस इज हाउस नंबर, ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, हाउस नंबर 2, दिस इज हाउस नंबर 3, दिस इज हाउस नंबर 4, 5, 6, 7, इसको ऐसे नंबर्स आप लिख सकते हैं अपने हाथ से ऐसे बना के। अब ये हाउस नंबर कौन से है ना, ये आपको ये भी याद करने हैं। So 12 हाउसेस हो गए हमारे पास। So sir, it will be like 1 is Aries and so on, है नहीं, ना? अच्छा, ये 1 इज एरीज जो है, ये आपको जो दिखेगा, ये भी मैं हाउसेस की बात कर रहा हूँ, साइंस में नहीं आया हूँ। हाँ नहीं, अभी जो हाउस बना रहे हैं इसमें 1 is Aries, नो नहीं, 1 इज फर्स्ट हाउस, दिस इज फर्स्ट हाउस। ओके हम 3 चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर मेन। एक है हाउस का सिग्निफिकेंस, ओके हाउसेस क्या है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे प्लैनेट, फिर हम पढ़ेंगे साइंस का सिग्निफिकेंस, साइंस क्या है। फिर हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स क्या है, वो चीज। सर इसमें होता लगना कहाँ होता है? हाँ लगना इसमें होता है क्या, कहाँ पर? हाँ बिल्कुल होता है, लग्न होता है। अब ये लग्न और असेंडेंट कैसे होता है, कैसे आप देखेंगे, वो भी हम अगली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फर्स्ट हाउस जो है यही लग्न है, अच्छा, जो फर्स्ट हाउस होता है यही लग्न होता है, यही असेंडेंट है, यही दिस इज द बिगिनिंग ऑफ लाइफ जिसको हम बोल मून सकते हैं। साइन कौन सा होता है? और जो मून साइन, जिस हाउस में मून है, अभी हम साइंस पे आएंगे, अभी सब करेंगे। आपको 2 क्लास रुक जाओ बस, सब आपकी सारी जितनी जो भी आपको क्वेश्चन है ना, सारे आंसर हो जाएंगे। सिर्फ ये धीरे धीरे, पहले आपको नंबर याद हो गए सारे, नंबर 9 कौन सा साइन है, नंबर 11 कौन सा साइन है, याद है? पूरा याद है? नंबर 10 कौन सी राशि? नहीं सर, अभी करेंगे जो Saturn. टेस्ट डे आफ्टर। तो हाँ, डे आफ्टर। तो ये राशि याद कर लीजिए पहले, बेसिक एक एक करके, अदरवाइज समझने में थोड़ी सी, फिर हम जितना स्पीड में भागेंगे मैं समझ, इसीलिए मैंने फर्स्ट क्लास में ये हॉरोस्कोप इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जो अंदर से जो होता है ना, जब तक आप हॉरोस्कोप हाथ से नहीं बना के देखते, तब तक मन फील ही नहीं आती कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। ओके, इसलिए मैंने इस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि ये है। अब ये हाउसेस क्या है, अब 3 लेयर्स हैं। पहला लेयर है हाउस। हाउस क्या है? वो है इवेंट्स, आपकी लाइफ के सारे इवेंट्स, जब आप पैदा होने से लेकर मरने तक के सारे इवेंट्स आपके हाउसेस हैं। आपके सारे रिलेशनशिप्स, आपकी प्रोफेशन, बीमारी, आपकी पूरी लाइफ में जो जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, वो सारे हाउसेस बताएंगे। हर हाउस कुछ सिग्निफाई करता है, कुछ चीजें सिग्निफाई करेगा, कुछ इवेंट सिग्निफाई करेगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सिग्निफाई करेगा। तो हाउस का सिग्निफिकेंस हो गया। फिर आता है उसके ऊपर एक लेयर आएगी साइंस की। साइंस मतलब साइन वर्ड में यूज करूंगा राशि की जगह, तो साइंस इज योर राशि, जोडियाक की। अब जोडियाक्स की साइन ऊपर एक लेयर आ गई कि कौन से हाउस में कौन सा साइन है, ठीक है। हर एक उसमें अलग अलग साइन होगा, नंबर लिखूंगा। अब जो कुंडली आप जो डाउनलोड करेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर से, उसमें हाउस नंबर नहीं लिखा होगा। ये जो मैंने लिखा है ये आपको सब याद करना है कि पहला हाउस यही वाला है, दूसरा हाउस ये है, तीसरा ये, एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे हाउसेस। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज में हाउसेस चलेंगे, हाउस नंबर कहीं नहीं लिखे होंगे, जो नंबर पड़ा होगा उसमें वो राशियां हैं। जो नंबर आप देखेंगे, हर एक जब भी आप डाउनलोड करेंगे, आप उसको अंदर आपको हॉरोस्कोप में नंबर्स मिलेंगे आपको। जैसे मैं आपको
तो लाइक अगर 7 लिखा है 1 में, तो दैट मीन्स वो 7th प्लैनेट का उसमें जी हाँ, है। बिल्कुल। जैसे मैंने एक हॉरोस्कोप में आपको शेयर कर रहा हूँ, जैसे हॉरोस्कोप, तो ये लग्न चार्ट है, ठीक है। अब ये लग्न चार्ट में जैसे ये नंबर पड़ा हुआ है ना 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर पड़े हुए हैं, ये साइंस हैं, वो वाले साइंस हैं इस हाउस में। मतलब सेकंड साइन, सेकंड इज टॉरस, तो टॉरस जो है वो फर्स्ट हाउस में। और फिर ये भी साइंस भी एंटी क्लॉकवाइज चल जाएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 जैसे चलते हैं। तो असेंडेंट कोई भी हो सकता है। असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस। अब असेंडेंट और लग्न में बड़ा फर्क है, ये भी जब हम असेंडेंट पढ़ेंगे तब हम करेंगे। बट ये आपको समझना है कि जो नंबर्स हैं, जो नंबर्स आपको दिखेंगे वो हर हॉरोस्कोप में लिखे होंगे। नंबर्स इंडियन हो चाहे साउथ इंडियन हो, कोई सा भी कहीं का भी हो, उसके अंदर आपको ये दिखेंगे नंबर्स लिखे हुए। सो दीज आर साइंस जो उसमें लिखे। अभी आपको ये याद करना है, ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस। अभी हम हाउसेस पढ़ेंगे, तो एक लेयर होगी हाउसेस की, उसके ऊपर एक लेयर आई साइंस की, कौन से हाउस में कौन सी राशि। फिर आई एक लेयर प्लैनेट्स की, कि फिर कौन से हाउस में कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट है। उस तरीके से हमने देख के हमें, और हमेशा लड़ाई इन्हीं चीजों पे रही गणित पार्ट में, कि कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट है, कौन सा क्या है, और कैसे उसका रिजल्ट आएगा, कैसे उसका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को कैसे एनालाइज करना है। तो गणित पार्ट जो था उसी में पहले लड़ाइयां होती थी बड़ी, नहीं तुमने ठीक, तुम्हारी कैलकुलेशन खराब, मेरी कैलकुलेशन सही। थैंकफुली गणित में अब कंसेंसस आ गया, अब ज्यादा वेरिएशन नहीं आता गणित को लेकर। हालांकि अभी उसमें भी चल रहा है, और स्लाइस करके देखो, और स्लाइस करके देखो उस चीज को, तो अभी भी चल रहा है। बट फिर भी मोटा मोटी लगन चार्ट आपका जो बनेगा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इट इज एज गुड एज योर, इट इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट फॉर ऑल द सॉफ्टवेयर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ प्लीज। सर किसी की अगर पथरी बनी हो हैंडमेड अबाउट 40 years बैक, ओके, और अब वो अगर हम उनका ऑनलाइन निकालेंगे, सो देयर बी अ डिफरेंस? पॉसिबल, 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 क्वाइट पॉसिबल। जैसे मेरी बनी हुई है हाँ, हैंडमेड आपकी जब हैंडमेड बनी थी और अभी जो बनेगी वो चेक हाँ, करना पड़ेगा, लगन चार्ट में भी हो सकता है डिफरेंस हो। राइट। पॉसिबल है, कोई इसमें मतलब आप डोंट गेट सरप्राइज, बिकॉज आज की डेट के जो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करेगा। और अभी हम आएंगे इसमें थोड़ी सी और एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, क्यों डिफरेंस आएगा इस चीज का, ये हम पढ़ेंगे कल। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीजें कवर करेंगे, और थोड़ा बहुत हाउसेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज हाउसेस, कौन सा हाउस किस बारे में बात करता है। फिर हम पढ़ेंगे कौन सा साइन का नेचर क्या। तो एक तो हो गया हाउस, फिर आया हाउस का नेचर। नेचर मतलब वो हाउस किस तरीके से बिहेव करेगा, वो बिहेवियर जो है हाउस का वो बताएगा साइन, कौन सी राशि किस घर में है। और रिजल्ट जो आएगा वो आपकी लाइफ में क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला वो देगा प्लैनेट। तो हाउस, राशि सब सही है। सारी लड़ाई जो है आज की डेट में जो ज्योतिषों में या जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं, या जो आप कह लीजिए जो विचारों का मतभेद है, वो सारा का सारा आपका प्लैनेट्स पे है, कि प्लैनेट्स क्या सही कह रहे, कौन की प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं। सर एक बार आप साइन फिर से एक्सप्लेन करेंगे? आई हैव गॉट कंफ्यूज्ड। आई मीन हाउस आई हैव अंडरस्टूड, प्लैनेट आई हैव अंडरस्टूड, ये साइन का रेलेवेंस कहां से आता है? साइंस का रेलेवेंस कहाँ से आता है, मैंने बताया ना, जोडियाक को आपने, एक जोडियाक है, जोडियाक इज 30 डिग्री 360 डिग्रीज, राइट। ठीक है। तो जोडियाक जो है वो 360 डिग्रीज का है। तो आपका सोलर सिस्टम आप समझ लीजिए, सोलर सिस्टम कह लीजिए इसको आप, यूनिवर्स कह लीजिए, जो मर्जी कहना कहिए आप उसको, 360 डिग्रीज है, ठीक है। 360 डिग्रीज का अगर हम, अब 360 डिग्रीज है पूरा का पूरा एज इट इज हम देख नहीं सकते, और उसके अंदर बीच में बहुत सारे कॉन्स्टेलेशंस हैं। तो 360 डिग्रीज को हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया, 12 मेजर डिविजन्स,
Right. 12 मेजर डिविजन यू कैन से जो है वो है, तो वो 360 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज के एक एक जोडियक बन गए, 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हमने जोडियक्स को, मतलब पूरे सोलर सिस्टम को 12 हिस्सों में डिवाइड किया, तो 30 डिग्री का एक जोडियक बन गया। Yes. ठीक है, इसको फर्दर किया। हाँ, अब और भी यहाँ पे और भी पता नहीं कौन सा टेलीस्कोप था, कुछ और नजर आ गया लोगों को, और भी इसको फर्दर बाइफरकेट किया, तो 27 नक्षत्र भी इन्हीं के अंदर आ गए। अब प्लैनेट्स भी इसी में ही है, ऊपर ही है तो एक ही सोलर सिस्टम ना। अब सोलर सिस्टम को समझने के लिए एक जो आपको जो दिख रहा है नेकेड आई से, समझ लीजिए आपको नेकेड आई से कुछ दिख रहा है, पहले क्या स्टार्स प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो बहुत साल तो ये लगे होंगे समझने में कि ये एक सैटर्न अपनी साइकिल पूरी कब करता है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मरकरी कितने दिन में घूम के आया था सन से बाहर और वैसे दिखता है ऊपर। मार्स कैसे घूमता है, कितना टाइम लगाता है घूमने में, और कहाँ पे दिखता है, कितने टाइम बाद आएगा। सो ये तो एक कैलकुलेशन होगी, आपको आइडिया होगा ये इतने टाइम पे आएगा। तो जब बच्चा पैदा हुआ तब फोटो खींची या स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ऊपर का, बट उसको प्लॉट करना है। अब वो अलग अलग राशियों में घूम रहा है, प्लैनेट्स का घूमेंगे, वो जोडियक में घूमेंगे सारे, राइट। वो कहाँ जाएंगे, मतलब इट इज, हमने तो इमेजिनरी है ना सारा, फिक्स थोड़ी लाइनें थोड़ी ड्रॉन है वहां पर, कोई लाइन थोड़ी है ऊपर, वो तो फिक्स्ड है। अब जो फिक्स्ड चीज है ऊपर, उसमें जो हमारे इमेजिनरी चीज है उसके अंदर प्लैनेट्स घूम रहे हैं, वो तो हमें, अगर हमें दिख भी नहीं रहे अपनी नेकेड आई से, बट हमें ये मालूम है थ्रू आवर एफएमआरआईज, थ्रू आवर कैलकुलेशंस, कि आज की डेट में कौन सा प्लैनेट कहां पर होगा, बिकॉज वी नो मूवमेंट ऑफ स्टार्स। राइट। जैसे अभी पीछे कुछ दिन आपने देखा होगा दिसंबर में, 17-18 दिसंबर, 21 दिसंबर जब था, उस टाइम पे जुपिटर एंड सैटर्न के ऊपर काफी कुछ आया होगा, न्यूज़पेपर में आया, टीवी पे आया। जुपिटर एंड सैटर्न नेकेड आई के से विजिबल थे 800 साल बाद, एंड दे वर टुगेदर सेम इन सेम डिग्री एज सीन फ्रॉम अर्थ। उनके ऑर्बिट तो अलग अलग है, लेकिन जैसे अर्थ से देखा तो दोनों एक ही लाइन में आ रहे थे। तो ये 800 साल बाद नेकेड आई को विजिबल था। होता हर 20 साल में दोनों एक ही साथ आएंगे। एक साथ कहाँ आएंगे? एक साथ एक साइन के अंदर आएंगे सबसे पहले, फिर एक नक्षत्र के अंदर आएंगे, फिर एक डिग्री, फिर उनकी डिग्रीज आएंगी कितनी डिग्रीज में। तो ये इस तरीके का डिवीजन है, मतलब एक लेयर्स है, मतलब समझिए एक पहला लेयर हो गया ज़ोडिएक का, फिर हो गया नक्षत्र का लेयर, फिर हो गया पीछे प्लैनेट जो भी घूम रहा है, किसी भी नक्षत्र किसी भी ज़ोडिएक में आ सकता है। अभी क्लियर आया, कुछ समझ में आया? Yes, sir. Thank you. Got it. हाँ जी, आ गया क्लियर। चलिए, तो ये दिस इज द डिवीजन। तो ये आपको बेसिक समझना, मतलब मेरे को यही लगता था कि ज़ोडिएक कहाँ पर है। अब जैसे बहुत लोग बोलेंगे, आपको टीवी पे दिखेगा सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करने वाला है, अभी आएगा, मकर संक्रांति आने वाली है 14 जनवरी को, तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने वाला है। अब मैं तो पहले यही सोचता था कि कैसे सूर्य कहाँ और कैसे प्रवेश करेगा, ये राशि है कौन सी, मतलब कौन से दरवाजे से घुसेगा, किधर है, कौन सी राशि, मतलब व्हाट इज इट। अब बाद में समझ आया, अच्छा वो इमेजिनरी लाइन से तो एक एरिया से हटके दूसरे एरिया में घुसेगा, विच इज ओके। और सूर्य कितना टाइम लेता है, अब कितना वो हम पढ़ेंगे पूरा कि कितना टाइम लेता है कौन सा प्लैनेट फॉर ईच राशि का मूवमेंट, और वो सब चीज हम लोग विल कवर। बट सूर्य मकर राशि, मतलब सूर्य विल बी एंटरिंग इनटू कैप्रिकॉर्न ऑन 14th of January। ये तो हो गया फिक्स दिन का, इनकी साइकिल है फिक्स, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल डिस्कस इन डिटेल। उसी में हम सायन और नारायण भी चेक करेंगे क्या होता है। बट अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हाउसेस है, एक है हॉरोस्कोप, ये आपको समझ लीजिए ऊपर जो भी दिखा उसको हमने कैसे किस मैप में प्लॉट करना है, वो मैप हमने बना लिया। मैप में 12 हाउसेस बना दिए। क्यों 12 हाउस बना दिए? क्योंकि 12 साइंस है, 12 साइंस के लिए हमें जगह चाहिए, और सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया। सब 30 डिग्री के हैं, तो एवरी हाउस इज ऑल्सो 30 डिग्रीज। इसका भी टोटल आप करेंगे तो 360 डिग्रीज आएगा ये भी, क्योंकि एवरी हाउस, so every sign is 30 degrees, every house is 30 degrees,
एंड एवरी प्लैनेट, अब प्लैनेट कहाँ घूम रहा है, प्लैनेट तो हाउस और राशि में घूम रहा है ना, दूसरे राशि में जाएगा तो फिर से 1 डिग्री से शुरू करना पड़ेगा उसको, तो इसलिए एवरी प्लैनेट इज ऑल्सो 30 डिग्री, हर एक की डिग्रीज है, हर एक की डिग्रीज है कि कौन सी, वो डिपेंड करता है किस टाइम पे आप पैदा हुए, उस टाइम पे आपकी फोटो खींचेगी पर आपका हम इसमें डालेंगे। अब स्टार्टिंग का है, बर्थ पॉइंट जो है आपका, वो है आपका फर्स्ट हाउस। अब इसको बहुत सारी इसको इंग्लिश में एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं असेंडेंट, और हिंदी में बोलते हैं लग्न। अब मैं जैसे एस्ट्रोलॉजी, मैंने बोला एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष में बड़ा फर्क है, सेम फर्क है इसमें भी। असेंडेंट का मतलब होता है द वन विच राइजेस इन ईस्ट, तो वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में करेंगे असेंडेंट और वो सब निकालना। तो वन विच राइजेस इन ईस्ट इज असेंडेंट, तो वो असेंडेंट हो गया जो भी स्टार राइज। लग्न का मतलब है द वन विच जॉइंस टुगेदर, तो लग्न का मतलब इज ज्वाइनिंग, तो ज्वाइन किससे हो रहा है, पास्ट लाइफ से करंट लाइफ जो है आपकी वो ज्वाइन हो रही है। दैट इज द रीजन व्हाई फर्स्ट हाउस इन ज्योतिष इज नोन एज लग्न, एंड देयरफॉर योर बेसिक चार्ट, सबसे बेसिक चार्ट जो बनता है वो बनता है लग्न चार्ट, एंड वन ऑफ द वेरी, मतलब इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। लग्न चार्ट इज व्हाट इट डिसाइड्स योर everything in life, तो whatever events will happen, it will happen as per the लग्न चार्ट। तो ये लग्न चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट हो गया आपका। तो ये और इसी द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड लग्न चार्ट इज, आई टोल्ड यू, इट इज जॉइनिंग योर पास्ट लाइफ विद दिस करंट लाइफ। एंड असेंडेंट भी बोल सकते हैं आप, लग्न भी बोल सकते हैं, इट इज अप टू यू, बट डिफरेंस यू नीड टू नो, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या डिफरेंस है। सो ये नक्षत्र का हो गया, ये चीजें हो गई। होमवर्क आप लोगों को मालूम है, दो चीजें करनी है आपने, प्लैनेट्स का ऑर्डर याद करना है, और आपने याद करना है साइंस के नंबर्स, राशियों के नंबर्स। सो एनी डाउट सो फार, आज की क्लास में कुछ भी डाउट, एनी डाउट यू गाइस हैव, एनीथिंग ऑन एनीथिंग? सर कैन यू रिपीट वो असेंडेंट एंड लग्न का डिफरेंस अगेन प्लीज? हाँ, तो असेंडेंट का मतलब हो गया, असेंडेंट मीन्स, ये मैं कल भी रिपीट करूंगा वैसे, जब हम असेंडेंट देखेंगे आप खुद देखेंगे असेंडेंट कैसा निकालना है। असेंडेंट का मतलब होता है द वन विच राइजेस इन ईस्ट। असेंडेंट मतलब ऊपर उठता हुआ, कहाँ उठता हुआ, ईस्टर्न डायरेक्शन में उठता हुआ, दैट इज व्हाट असेंडेंट मीन्स। लग्न का मतलब होता है द वन विच जॉइंस, क्या ज्वाइन कर रहा है, पास्ट लाइफ को करंट लाइफ से जो ज्वाइन कर रहा है वो लग्न है। तो फर्स्ट हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस इज योर लग्न हाउस, और लग्न चार्ट जिसको बोलते हैं, या लग्न आप जो हम बात कर रहे हैं। तो आप जब आप हॉरोस्कोप निकालेंगे अपना उस किसी भी उससे वेबसाइट से या ऐप से, तो उसमें लग्न चार्ट होगा आपका, आप लग्न चार्ट देखिएगा, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चार्ट। वो लग्न चार्ट आप ड्रॉ कर लीजिएगा एक पेपर पे, और उससे हम समझने की कोशिश करेंगे हर एक का कि क्या लाइफ में क्या, मतलब जो उससे हम बेसिकली आप उसी को पढ़ेंगे, उसको पढ़ना सीखेंगे आप। तो पहले तो सबसे पहले ये हॉरोस्कोप बनाइए अपना, प्लैनेट्स का ऑर्डर याद करिए, और साइंस का ऑर्डर याद करिए, सारे एरीज टू पाइसेस तक सारे साइंस का नाम याद होना चाहिए, उनके नंबर्स याद होना चाहिए, क्योंकि लग्न चार्ट जब आप डालेंगे ना तो ऐसे नंबर लिखे होंगे उसमें, जैसे मैंने आपको दिखाया था पीछे एक चार्ट में और उसको में ऐसे नंबर लिखे होंगे। वो नंबर जो है वो राशियां हैं, दे आर ज़ोडिएक्स, दे आर साइंस। उन राशियों का क्या मतलब है क्या नहीं है वो हम सारा डिटेल में करेंगे, क्या चीज़ है, बट ये समझ आना चाहिए वो राशियां हैं। तो राशियों को पढ़ने के लिए कोई राशि का नाम नहीं लिखा भी, प्लैनेट्स, क्योंकि हर प्लैनेट का बिहेवियर जो है ना, प्लैनेट क्या करेगा आगे, वो किस हाउस में बैठा है और किस राशि में बैठा है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो प्लैनेट का बिहेवियर जो है, ये अच्छा है बुरा है, कैसा फल आएगा इसका, क्या, हाउ विल इट रिस्पॉन्ड टू वट एवर events in your life, that most of it will depend on which sign the planet is sitting, which house the planet is sitting, और बाकी और भी फैक्टर्स हैं, एस्पेक्ट कंजंक्शन और वो सब हम पढ़ेंगे बाद में।
बट पहली चीज ये आप डाउनलोड कर लें अपनी अपनी कुंडलियां, बना लें साइड में एक पेपर पे, एंड लर्न दीज टू थिंग्स जो आज हमने बात करी. सो एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? आज की क्लास में किसी को कोई भी क्वेश्चन है? No, sir. Thank you. Sir, I to ask maximum questions, so every नहीं ऐसा कुछ सी देखो, ज्यादा क्वेश्चन पूछने में कोई मेडल नहीं मिलने वाला, ठीक है, और नहीं पूछेंगे तो आप ही का नुकसान है. नहीं, that's what I'm saying. My query is resolved. मैंने तो maximum पूछ लिया. बस ठीक है, तो अगली क्लास में पहले मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, फिर उसके बाद आगे शुरू करेंगे. तो इसलिए बी प्रिपेयर्ड, आप लोग याद कर लें दोनों चीजें. Sure, sir. ठीक है जी, चलिए फिर लेट्स मीट ऑन वेडनेसडे सेम टाइम. Okay, thank you. थैंक यू. Okay, sir. Bye. बाय.